thought initially I should introduce the panel and everything else in English, but then later on we'll switch to English for the benefit of local people who will feel comfortable. And along the way, we would just give a short summary of 1 or 1.5 minutes after each panelist, one-liner or comment, not much. So that is the norm here. So firstly, let me introduce the panel with us. Initially, Dr. Abid will give he's the executive director here. Yes, the SDPI, he'll give the opening remarks. To my left is, and a famous environmentalist journalist. His name is Abid. What a coincidence. And he's an award winner, environmental journalist, has over 11 years of experience in environmental journalism. He's also president of the Environment Journalists Association and Pakistan EJP, and is currently working with Samaa TV. To his left is Ms. Farzana. Ms. Farzana Khan, she's the DG Environmental Protection Agency, EPA, one and only. And her brief introduction is that she's the DG and she spent much of her working life doing protecting the environment, an official position, quite a vocal advocate of the cause, and participates in through building narrative and all. To her left is Mr. Kalim Imam, need no introduction. He was IG here, Inspector General Police, head of Federal Secretary, but very few people know that he holds a PhD degree. So he's a Dr. Kalim Imam. He works with the United Nations and international bodies in cutting edge work related to administrative and police and other reforms as well. To his left is Ms. Shazia Bilal. She's the lawyer, and she advocates case of the environment on official grounds, on forums where we get some relief or something. And straight away, now we switch to one and only Romina Khurshid. She has joined. Romina, we take you as a family member, and that's why Romina Khurshid is MNA. She's very vocal on different issues, part of many caucuses, and I personally know she has personally been mover and shaker in many legislations which see the light of the day and Parliament. And still, her work is more on the, I would say, academic side, which ultimately goes to the Parliament and get law as a seal. And Romina has requested that she was be taken first, and I'll be brief introduction of the seminar by Dr. Abid. I would invite Romina Khurshid. But first of all, one thing I forgot, when we were preparing this seminar, we were discussing how to present it. So we thought it should be bottom up. We should take a case and introduce and then build the valuable opinion. Over to Dr. Abid. Thank you, Tahir. Welcome, dear panelists. I think, Tahir, you forgot to give a complete introduction of Ms. Romina Khurshid. She's also SAPM, and she's the convener of Parliamentary Taskforce on Sustainable Development Goals. And today's seminar is quite relevant to the working of SDG Taskforce, especially goal number 11, where we're talking of sustainable cities and societies, and the 3 goals on climate change and environment. So it was in that capacity that we requested Romina Khurshid to join us and take the findings and recommendations of this seminar to the Parliament for further legislation. Well, ladies and gentlemen, today's webinar and hybrid seminar, the topic is important, but topic becomes more important and more relevant every year during monsoon, where we find urban flooding, where we find the housing societies and people's dwellings inundated by the monsoon rains and water.
partly because of the fact that they are given false sense of security when they either start building a house or when they rent a house, which is in a society which is illegally constructed in a water body. And although the title of the seminar is in peri-urban areas, but it's not only in peri-urban areas. One can argue that every year when Indus River, it gets some swells up. Of course, most of the South Punjab, starting from Muzaffargarh till Rajanpur, across the riverbed, all the housing societies and all the settlements, and even the houses constructed in Kacha area, they get inundated because somehow people, they feel a false sense of security that the construction that they have done, it's in a safe area, that area would never get flooded. But then ultimately when flood comes, they simply wipe off their whole years, whole life savings and the construction. तो ये उसका एक broader theme है जिस पे की बात करना चाह रहे थे, और उसी के लिए हमने जो आज के diversified panel बुलाया, जिसमें के of course we have a legislator, we have very eminent lawyer taking these cases, we have Dr. Kalim Imam, जो के not only from law and order perspective, but he holds a PhD in philosophy and international politics. So वो जो एक human behavior, human attitude होता है, why we actually do the things जहाँ के हमें पता होता है कि ultimately would be vulnerable, but still we have some sort of false sense of security और हम उसको करते, उस aspect पे बात कर रहे होंगे. आबिद अली साहब इन सारी चीज़ों को कवर करते आए हैं, और फरजाना शाह साहबा जो हैं वो एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो कि पाकिस्तान की प्रीमियर एजेंसी है इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए लॉज के, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसके डायरेक्टर जनरल, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे. तो ये है आज के सेमिनार का पर्सपेक्टिव. थैंक यू वेरी मच. इससे पहले कि मैं रोमीना खुर्शीद साहिबा को इनवाइट करूं, आज के सेमिनार को हमने स्पेशली बॉटम अप रखा है. हम केस एक प्रेजेंट करके छोटा सा उसका जिक्र बिल्कुल 1-8 मिनट में, और फिर आगे चलेंगे. एक ऐसा घर जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे, जो रिवर बेड के अंदर बना हुआ. EPA ने उसकी कहा कि आप इसके ऊपर स्टडी करें और इसको फौरन रोका जाए. इंतजामिया ने हुक्म दिया, और जो गर्दावर और पटवारी था उसने अपनी रिपोर्ट दी, जो अल्टीमेटली कोर्ट प्रोसीजर्स और EPA का पार्ट बन गई कि यस दिस इज रिवर बेड एंड दिस इलीगल कंस्ट्रक्शन. उसने कंस्ट्रक्शन कर ली, और जो जिसने रोकने के लिए जो वहां से गया था, उन्होंने अल्टीमेटली कोर्ट का लेके उसको रोकने की कोशिश की, बट एक मतलब बन गया. और इट इज डीप इन द रिवर बेड खुरांग के, और वहां से हर चीज पास ऑन होती है. तो इस बैकड्रॉप में, और बिल्कुल पेरी-अर्बन जो डॉक्टर आबिद ने भी कहा, वो उसका एक ये बिल्कुल नमूना है. तो स्टार्ट में ही हमने मिस रोमीना खुर्शीद को वैसे तो सोचा था कि आखिर में रखेंगे कंक्लूजन लेके, लेकिन वो कंक्लूजन हम कोशिश करेंगे कि रिटन फॉर्म में आपको भेज दें. तो ओवर टू यू मैडम. Assalamu alaikum and good afternoon. I hope I am audible to everyone. Am I? Can you hear me? Yeah, okay. Yes. First of all, it's always a great honor to be in the forum of SDPI. And Tahir sir, you very well said that yes, I'm proud to say this and admit that I am the SDPI's family, and I always admit that because so much I have learned. And on specifically on not only on climate change, on anything, I feel this is a place where I always say this, but I believe this is a place where I feel if I want to do something,
मैं उल्टी भी गंगा बहानी है तो मुझे आबिद भाई और SDPI कहेगा okay Romina, go for it, because we know you can do it. So I think this is the motivation, and alhamdulillah, may Allah be bless you more and more, guys, and I'm so much thankful for having me on this session. But first of all, I want to be I want to apologize, because today we have a couple of meetings because right now I'm in my SDG secretariat, because we are having a national meetup conference. So for that regard, we are having some preparation. So for that, we had been somehow occupied, but you don't need to send me the paper only in the written form. You can always call me, and everybody knows that I'm the most easiest person for the access. Anybody can have easiest access to me. और जो subject जिसके ऊपर अभी बात होने जा रही है, but उससे पहले I would really want to pay my regards to the honorable panelists who are sitting, Madam Farzana. Of course, we have done a great work along, and of course the media is also here. It's very nice to know, because this is something which I believe the media needs to be very much on it. And when, because जब कहीं कुछ नहीं सुनता, जब media सुनाता है तो फिर everybody do listen to them. And I'm so glad that someone from the law is also here, and of course the the secretary Saab, who has served before, he's also here, and I'm sure we can learn from each other practices. And I'm sure everyone who is sitting over there, they themselves an institute among themselves. And I am really, as a humble student, I always wanted to learn and really wanted to deliver as well. So coming back to the subject, this is one of the definitely it's a SDG goal 11, which addresses moreover and the subject which you is talking, it's of course this is very much relevant to it. It addresses slums, human settlement management and planning, climate change mitigation and adaptation, and urban economies. Of course, SDGs 11 has set the target for upgradation of slums, affordable and sustainable transport system, protection of cultural and heritage sites, reducing adverse effects of natural disasters, providing inclusive and green spaces, disaster risk reduction, and building resilient and sustainable infrastructure. Of course, we all know, and I don't want to take much more time on these things, like everybody from our side, we all know that half of the population is of course, they are living on the urban cities, and moreover, the people due to the climate change and other issues, and for the reason of the poverty, they are trying to move towards to the urban sides without knowing what could be the repercussions uske kya honge, and what they can were the places for them or not. But you know, everybody wants to try, and they want to shift towards it. As the world fights with the deadly pandemic that has taken more than 2 million lives, we all know most infections have been found in urban areas. Again, rapid urbanization and rural to urban migrations, and of course increasing the burden on urban areas as the city boundaries creeping. And then of course there are so many issues which related to that, and they are day by day getting increased more problem. And then of course we do have the problems of air pollution, inadequate infrastructure, unreliable municipal services, transportation, healthcare facilities. So what is not that, of course, that this goal, because from the lens of the SDGs 11, because when I talk about that on the sitting of the chair of the SDGs, I believe each and every inch or point something as well matters a lot. When we are talking to about this communities or the issues which Dr. Abid Suleri and of course Tahir Sahab you also mentioned, I as the member of the climate standing committee, member of the climate change as well, and when I was the parliamentary secretary of the climate change too, I always mentioned and raised these issues very strongly, that those buildings who have been high-rise buildings, they are building day by day, they most of the time when they are making their buildings, what sort of a material they are using, is that material is environmental friendly or not, the way बहुत सारी मैंने कहा मैं उर्दू में भी आ जाऊं, पहले मैंने कहा सबको पता चलता है मैं इंग्लिश थोड़ी बोल लेती हूँ, मैंने कहा मैं जरा उर्दू में खोल के बोल लूं, जरा ज्यादा अच्छा होगा कि हम बात कर सकें. I hope there is not been any issue. Is it okay, or do we have any international audience as well? Okay.
میری آواز نہیں آ رہی؟ Yes, it's absolutely clear. You please go ahead in Urdu. If there is something, we will translate it and give a summary later on. Okay, fine, Ji, thank you. Well, while when I was in this, I am in the standing committee of the climate change, and previously as well, and now this time too, we always raise these sort of issues. और मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर मैडम फरजाना जो है, वो भी definitely हमें मजीद इसके ऊपर रोशनी डाल सकती हैं, हमें बता सकती हैं कि हम किस तरह से इन चीजों को मजीद रोक सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसके ऊपर काम जो है SDGs सेक्रेटेरिएट के थ्रू हम इसके ऊपर स्ट्रांगली इस इशू को उठाते हुए आई एम इनवाइटिंग ऑल द कॉर्पोरेट ऑल द सोसाइटीज जो कि बगैर सोचे समझे जो है वो जब बिल्डिंग्स बनती हैं, और वो जो हाई राइज बिल्डिंग बनती है डेफिनेटली उसमें दरख्त भी कटते हैं, उसमें बहुत कुछ कटता है। कई जगहों पर अगर दबंग मैडम को पता चल जाता है वो पहुंचती हैं और वहां पर जो है वो रोक दिया जाता है, या कहीं पर हम अगर पहुंच पाते हैं तो रोक लिया जाता है, लेकिन स्टिल द थिंग इज नॉट बीन हैंडल्ड प्रॉपर्ली। लाइक देयर आर सो मेनी एरियाज विच आर बीन ओवर पॉपुलेटेड एंड दे आर ओवर बिल्ड। लाइक इफ यू टॉक अबाउट द मरी में जिस तरह तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है और वो जिस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जाहिर है आपकी जमीन भी कमजोर होती है, आपका जो वाटर का मैकेनिज्म है वो किस तरह कितनी हद तक डिस्टर्ब होता है। तो ये काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि डे बाय डे रेज हो रहे हैं, और इससे रेलेवेंट कितने मजीद और जो है वो रेज हो रहे हैं वो भी हम सब जो है वो जानते हैं कि किस तरह। इनफैक्ट आई डोंट माइंड टू से दैट कि ये जो हाउसिंग सोसाइटीज या प्राइवेट सोसाइटीज या इस तरह के जो काम है, ये जमीन को की नशोनुमा को एक स्कार है उसके ऊपर, और अगर ये प्रॉपरली तरीके के साथ नहीं बनते, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को देखते हैं तो वहां पर तो एक दरख्त को काटा नहीं जाता बल्कि रास्ते को जो है वो डायमेंशन उसकी चेंज कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो इश्यूज हैं उनकी वजह से हमारा इकोसिस्टम किस तरह तबाह हो रहा है, हम देख रहे हैं किस तरह से जो है वो रूरल एरिया जो है वहां से लोग जो है माइग्रेट होते जा रहे हैं विदाउट नोइंग दैट विल दिस प्लेस इज गोइंग टू बी फिजिबल फॉर देम, और क्या बिजनेस उनको उस तरह से मिलेगा। सो दीज आर सम हाउ इश्यूज विच आर रिलेटेड। जो काम हम इसके ऊपर कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी मौजूद भी है, लेकिन वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम इस पे मजीद काम कर सके। दैट इज स्पेसिफिकली जो इस्लामाबाद से रिलेटेड, और डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट SDGs, so we are related with connected somehow with the 4 provinces, Kashmir, GB as well too. इसमें एक तो सबसे ज्यादा हमारी कोशिश है कि लेजिस्लेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और पेनल्टीज जो हैं, क्योंकि देखिए एक चीज जो मैं देखती हूँ कि एक दफा प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक दफा इजाजत लेने के लिए जो है वो एक छोटी सी अमाउंट दे दी जाती है और कहा जाता है कि ये आप इतनी स्पेसिफिक सी अमाउंट है, ये पे करें, आप सोसाइटी बना लें, जो मर्जी बना लें, और उसके बाद उनको लाइसेंस है कि ताहयाते वो मींस कि बिल्डिंग की जब तक जिंदगी है तब तक वो जो है बिल्डिंग वहां पे तबाही का या मजीद जो इससे रेलेवेंट चीजें हैं वो तबाही का लाइसेंस देती हैं। सो दिस दैट इज आल्सो समथिंग वेरी मच पेनफुल एंड दैट इज नीड टू बी एड्रेस्ड, एंड फॉर दैट वी आर रियली वांटेड टू कम अप फॉर द ग्रीन सर्टिफिकेशन व्हिच इज आई think so that which is already there, but it is not been I think properly उसकी implementation जो है वो properly उस तरह से जो है वो नहीं हो रही। और जैसे एक चीज जो सी है वीक रेगुलरिटी चेक ऑन द हाउसिंग सोसाइटी, हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। सिविक एजेंसी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी वजह से कॉज ऑफ द अर्बन फ्लडिंग डिस्ट्रक्शन एवरी ईयर इन इस्लामाबाद और दूसरी जगहों पर भी। अब जिसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं अभी पिछले दिनों में दैट इज अवेलेबल ऑन द इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल, कि हम लोग पिछले दिनों में हम लोगों ने CDA को साथ लेके हमने कोशिश की और उनको प्रॉपरली उनके पीछे चढ़ के जो है वो ये फैसला हम लोगों ने किया कि हमने नाले साफ करवाने हैं। गो कि मैं जानती हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस का काम नाले और गटर साफ कराना नहीं है, बट समटाइम्स अगर आपको किसी चीज के पीछे पड़ के अगर आप कोई चीज बेहतर करा सकते हैं तो मेरे ख्याल में उसका बहुत बड़ा फायदा हमें ये हुआ। कि मैं ये नहीं कहती कि अर्बन फ्लडिंग 100% इस्लामाबाद से खत्म हुई, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आया, और वो इस वजह से हुआ कि when we had the proper dialogues and system, like we have invited chairman of the CDA and other related authorities, and specifically Madam Farzana was also over there, and उनका भी ये
मशवरा था जिसको हम लोगों ने so I think we need more to have the communication strategy plus the implementation strategy as well, because of course seminars हम भी करें या कोई भी करे, उसके अंदर मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये कि implementation partners का होना और उसके साथ उनको इस चीज के लिए बाउंड करना कि they have to perform their work, और अगर वो नहीं करेंगे तो उसको हमें किस तरह से कराना है वो हम जानते हैं। हमारे पास समा है और वो जानते हैं कि कैसे समातों में चीजों को गोशगुजार करना है या किस तरह से लेके आना है, और एंड दैट इज अ ह्यूज इम्पैक्ट। मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जब उनसे कहा कि हमें 2 दिन, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, हमने उन्हें कहा कि जी 2 से 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हम ये काम कर देंगे। मैडम फरजाना भी उस मीटिंग में थी। 2 से 3 दिन के बाद जब हमें पता चला कि वो काम नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल में तीसरा दिन था या चौथा था, तो मैं अलॉन्ग विद माई टीम, मिस्टर अमार गिलानी थे, हम लोग वहां पर गए और उन्होंने उनको कहा कि मैंने कहा अगर आप आज बूट नहीं पहनेंगे तो कोई मसला नहीं, 2-4 दिन बाद खुद ही आपको बूट पहनने पड़ेंगे, तो या हम बूट पहन के नीचे चले जाते thing, and then मैंने कहा मीडिया में आपका ही आना है, सोशल मीडिया पे भी चलेगा। So this is something that किसी के भी खौफ में कोई काम हो जाए, लेकिन मेरा मकसद ये होता है कि thing need to be done, the work needs to be done, और वो अगर सही तरीके के साथ हो तो मैं समझती हूँ कि उसका काफी ज्यादा जो है वो भी हो सकता है। और उसके अंदर देखें यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, हम उसको किस तरह, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो क्लाइमेट का एलिमेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल हो, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरी अदर सिंगल थिंग। लाइक हर एक की कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी, जैसे अमूमन कुछ जात के लोग अगर बैठते हैं या हम आपस में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि किसी का डाक खाना मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज हो, अर्बन फॉरेस्ट्रेशन हो, फ्लडिंग हो, कोई भी चीज हो, ये तमाम तर चीजें जो एसडीजीज में है, हर एक का खाना एक से मिलता है, एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। और उसके ऊपर आई हैव अ ग्रेट बिलीव ऑन दिस टीम व्हिच इज सिटिंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ all the panel who is sitting over here, and which is very visible to me as a parliamentarian, as from the task force convener on SDGs. I am really wanted to assure you that whatever it going to come today from this session, we will try our level best to implement it along with your support. And of course, I am the great believer who believes that without the research work, without the civil society, things cannot be done in a proper way. And when आपके पास, हमारे पास यहाँ पर वकील भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी, जो जानते हैं कहाँ से कौन से कलम का लफ्ज घुमाएंगे हमारे लिए क्या होगा, और I think things can be great in that way. With this note, thank you so very much, and looking forward to hear from you and get back to you soon, inshallah. Thank you very much, Ms. Romina Khurshid. It was very valuable, और आपने इसको बड़ा अच्छा इंटरनेशनली जो लिंक किया लोकल, उससे पब्लिक को बड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि अल्टीमेटली तो किस तरह उनके लिए इट इज इन देयर सर्विस। मैं क्विकली इसको 1 मिनट में सिर्फ 2-3 चीजें जिन्होंने बताई। एक तो ये है कि उन्होंने कहा कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 के तहत जो है वो ऑलरेडी इस चीज पे फोकस हैं और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जिनको पार्लियामेंट के लेवल पे देख रही हैं। उसके लिए लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा रहा है, और इंतजामिया के साथ जिसमें EPA भी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, मिलके और CDA के साथ वो काम भी कर रही है। तो ये सिर्फ पॉलिसी लेवल पे नहीं बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे भी वो काम ये सारा जो है कर रही हैं, और शी इज ऑलवेज रेडी कि जो चीज़ यहाँ पे आएगी। और उन्होंने बताया कि शी इज बिलीवर इन रिसर्च, और सेमिनार्स के नतीजे में जो मटेरियल इकट्ठा होता है वो रिसर्च ही होती है, उसको शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक इट टू द पार्लियामेंट एट द हाईएस्ट लेवल, और उसको उस पर कानून साजी में वो मावन साबित हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको हमने आखिर तक रखा हुआ था कि तमाम आप सुन के उसकी रोशनी में आप कुछ और बातें, लेकिन आपको मीटिंग में आपने जैसे बताया कि जाना था, तो इंशाल्लाह ताला हम इसको कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा डिस्कस करें और इसको आगे फॉर्म अप करें। लुकिंग फॉरवर्ड, इंशाल्लाह, लुकिंग फॉरवर्ड। टेक केयर। बहुत बहुत शुक्रिया। With this, I would come straight away to Ms. Farzana Shah.
you are the DG और वो एजेंसी जो तभी लेजिस्लेटिव वर्क को सारा हमने देखा, you are the one at the helm. थोड़ा सा हमें बताएं कि आप इसको किस तरह से आगे ले जाना चाह रही हैं और वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपके हाथ में और पब्लिक उसको पूरी तरह यूटिलाइज करने के लिए आपके पास किस तरह है और किस तरह आपके काम को आगे बढ़ाने में आपकी मदद अगर मैं सजेशन दे सकता हूँ, आई थिंक गवर्नमेंट का रिस्पांस और क्या ईपीए क्या कर रही है वो आप बाद में थोड़ा सा बात में लीजिए। अगर आबिद साहब शाजिया पहले बात कर सकते चले इनसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि आप जानना चाह रहे हैं कि एज ए जर्नलिस्ट बता सके, एज ए लॉयर बता सके कि जी सिचुएशन है क्या। फिर आप फरजाना साहब का बाद में लेते हैं थॉट के पहले वो बता रहे हैं लॉयर्स लॉ का और जर्नलिस्ट को तो आखिर में मैं के सुन के वो किस तरह, लेकिन चले पहले करते हैं जस्ट सजेशन। हाँ ठीक है, पहले कर लेते हैं। That is good. SDPI, we are always next. अच्छा चले पहले कर लेते हैं। शाजिया बिलाल इज कुछ क्वेश्चन रेज करेंगे जिसके का बड़े अच्छे तरीके से मैं इन्फॉर्म कर सकूं। शाजिया बिलाल, आप एनवायरमेंटल लॉयर आप इस पे काम कर रही हैं और लीगल फ्रेमवर्क में क्या हिचेस हैं और क्या लेक्यूनास हैं जो हम रखें आगे थोड़ा सा। Thank you, Honorable Chair of the session, learning speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen. In the beginning, I will give you an overview of what the subject is and what the issue is and where it exists in Islamabad. Then I try to explain the gravity of the problem and how our courts have recently addressed the environmental issues in a series of judgments. In the end, I try to identify lacunas in the legislation and how to overcome the problem. Peri-urban areas are located on the outskirts of cities of large urban areas, but they retain characteristics of rural areas such as substantial reliance on agricultural production. Islamabad has seen an increase in the slum areas in and around different parts, and also the surrounding areas of Rawal Lake, with an evident surge in housing colonies. The illegal dumping of waste into the already scarce water resources with no proper planned drainage system is adversely affecting the quality of water coming into Rawal Lake, with no consideration of having environmental clearance from the concerned agency. To one estimate, there are more than 1 million people residing in more than 24 slums situated around different sectors of Islamabad. The legal framework of environmental law is that the 1997 Act is the basic legislation that deals with environment in Pakistan. The subject of environment is now within the provincial domain after the passing of 2010 Amendment Act. That was the 18th Amendment. The dilemma of peri-urban areas in Islamabad is that the areas remain unregulated. Most of those areas have not been formally zoned for housing by the government, nor urbanized with infrastructure. These areas are affecting directly even the planned areas of Islamabad. On January 25th, 2022, that is earlier this year, the Lahore High Court, in its landmark decision in the case titled Public Interest Law Association of Pakistan versus Environmental Protection Agency, popularly known as the Ravi River Project, scrapped the controversial multi-billion-dollar Ravi River Urban Development Project as it lacked, number one, the master plan, and second, the environmental impact assessments, which was a major victory for the environmentalists and farmers whose lands were being acquired forcibly and illegally by the government to build a new city for the rich and powerful on the banks of the river. Where non-compliance to the environmental impact assessment, EIA, led to the nullifying of the entire Ravi River project. Actually, the Ravi River project was built on the idea of modern cities, such as London, who had engineered rivers to become a natural feature of the city. Similarly, the project expected Lahore to use this natural river and develop the area on both river banks by containing Ravi River into a channel. Developing lakes on the river would add scenic beauty, numerous environmental entertainment options for the city, besides creating millions of jobs in a jobless economy.
The court in the Ravi River project, in its decision, among other observations, findings, held that there were several other findings, there were several issues in the case, but I picked only 3 which are related to this topic. Number 1, master plan is the foundational document under the project, and all the schemes follow the master plan. Thus, any schemes prepared in the absence of master plan were unlawful. Second, it further held that the environmental impact assessment and an approval by EPA has to precede the commencement of process of acquisition by the collector. Since this was not done, the notifications issued under Section 4 of the Act were struck down. Lastly, the EIA prepared by the project and submitted to EPA for approval was held ultra-virus on the ground that it does not conform with the Punjab Environmental Protection Regulations 2017. Now, the argument before the court was that the authority of law, which provides for compensation, would also include other laws, and the most pertinent law for our purposes was Punjab Environmental Protection Act 97, which involved the preparation of an environmental impact assessment report and its approval by the provincial agency. This would be a compensation not only to the environment, but also serve the purposes of climate and intergenerational justice, and must be done while awarding compensation to the landowners under the Act. Now, in another case, titled Asghar Lagari versus Federation of Pakistan, a single bench of the court held that the fundamental rights, like right to life, which is Article 9 of the Constitution, include the right to healthy and clean environment, and right to human dignity, Article 14. Read with constitutional principles of democracy, equality, social, economic, and political justice. Therefore, environment and its protection has taken a center stage in our scheme of our constitutional rights. 3 cases in recent times: the canal widening project case, Lahore Bachao Tehreek, and Imrana Tiwana cases are instances where, in order to compensate for the harm to environment, the proponents had undertaken upon directions by EPA to do certain acts in order to mitigate the loss to environment and formulation of environmental management. In simple words, environmental approval has to precede any construction or operation of a project. I just want to tell you that a week ago, like 10 days, in Ravi River project, the Supreme Court has for the time being suspended the ruling of Lahore High Court and allowed Punjab government to continue work on the project. But there were certain technicalities which the court is looking at. Then the Margalla Hills National Park case is one of many examples in which large-scale restaurant constructions adversely affected the Margalla Hills because it was constructed in violation of Section 12 of 97 Act. A number of stone crushers were operating without valid leases, which have also contributed to environmental degradation, and it seems that disregard is at the federal level. Now in Islamabad, since we are concerned in Islamabad, CDA, Capital Development Authority, is entrusted with the development and planning. It is performing like several environment-related functions through its directorates. There are different definitions given in the law what adverse environmental effect means and what EIA. I'm not going to read the definitions. Simply, the most important section is Section 12. There certainly exist gaps between the federal statute and the CDA rules. Section 12 provides for initial environmental examination and environmental impact assessment. The mandate of Section 12 is clear and cannot be undermined, as it categorically states that neither the project shall be constructed nor commence operations unless an EIA has been prepared and submitted to the provincial or federal agency, as the case may be. For the purposes of Section 1297, CDA may be, if appropriate, be declared as a government agency responsible for recording approvals for building plans and ensuring that no violation of the Act would take place if approval is granted. To my knowledge, CDA has not been assigned any designated role so far. Maybe they are in a better position to comment, other panelists. The CDA may amend its bylaws to make the mandatory environmental impact assessment to be obtained by the applicant from the designated government agency. Similarly, under Section 11 of the Act, CDA may ensure that none of its approval has an effect of allowing the discharge or emission of any effluent or waste or air pollutant or noise in any amount which is in excess of national environmental quality standards
Then according to, in terms of clause 10 of section 2, there is a definition of environment. So no role has specifically been assigned to CDA, being a local authority dealing with majority of components. As I earlier said, that in Ravi River project case, the master plan was the foundational, the fundamental document. Likewise, the master plan of Islamabad needs to be strictly implemented to ensure that no encroachment on the CDA lands are made and commercial activities in greenbelts, national park areas be effectively checked and must be discouraged. In terms of section 60 of the Act, one of the functions of federal environmental agencies is to prepare and publish an annual national environmental report on the state of environment, which they may publish periodically. In conclusion, I would say that from the discussion, one can safely gather that peri-urban areas offer space for continuous expansion, and that expansion needs to be regularized for better outcomes through planning intervention, as they directly affect the urban area of Islamabad. Just see what happened in Karachi last week. For years of neglect of peri-urban areas, the city came to a standstill. And if we continue to ignore Islamabad, don't expect a different result in the near future. Then there is a need to create awareness among the lawmakers, legal fraternity, and especially judiciary, to properly understand the impact that by neglecting peri-urban development, the consequences are heavy. And finally, the proper framework for law and development schemes should be incorporated immediately with the involvement of CDA and other regional lawmaking bodies to lay out a plan in line with the master plan. I emphasize in line with the master plan for the proper development of peri-urban areas of Islamabad, as it would lead to a poor environment. Thank you. Thank you very much. और quickly इसको उर्दू में थोड़ा सा दो तीन चीजें जो आपने कही वो बताने के लिए, इसमें जो सबसे ज्यादा इन्होंने स्ट्रेस किया वो ये है कि मास्टर प्लान जो इस्लामाबाद का था, उस मास्टर प्लान को इन लाइन लाने के लिए लीगल फ्रेमवर्क के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इन्होंने पेरी-अर्बन एरियाज के लिए ये की, एनवायरनमेंट के लिए, कि इसके लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि एनवायरनमेंट असेसमेंट करवाने के लिए जो EPA ने रेगुलेशंस की हैं उनका सर्टिफिकेट अथॉरिटी से लिया जाए by going through the mill and completing the procedure. तीसरी बात जो है वो इन्होंने जो की वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव वर्क है उसको फेडरल जो स्टैच्यूटरी वर्क है उसको रूल्स और आगे जो है वो कन्वर्ट करने की जरूरत है। इस सिलसिले में इन्होंने लाहौर रावी अर्बन जो रावी रिवर सिटी थी उसकी मिसाल भी दी, जिससे वहाँ की कोर्ट ने मास्टर प्लान के अप्रूव ना होने की वजह से, EPA अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल ना होने की वजह से और EIA के का जो है उसका पंजाब का जो एनवायरनमेंट एक्ट है उसका अल्ट्रा वायलेंस होने की वजह से रिजेक्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको अलाउ कर दिया है, बट कुछ बीच में उन्होंने चीजें टेक्निकली ऐड कर दी हैं जिससे किसी हद तक कॉम्प्लायंस हो गई है। मैं सही समझा? हाँ, किसी कॉम्प्लायंस होगी। तो ये है बुनियादी तौर पे लॉ का, और मैं समझता हूँ कि दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। किसी हद तक बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद अली जो कि जर्नलिस्ट हैं और इनका बड़ा ये अहम काम है क्योंकि इन्हीं के जरिए जो हम अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट की बात करते हैं ना, नैरेटिव बिल्ड होता है और हमने देखा है कि नैरेटिव जब हम बिल्ड कर देते हैं तो फिर वो क्या करता है, सियासी एनवायरनमेंट की बजाय ये तो माहौल का एनवायरनमेंट उस पर गुफ्तगू करें। हाँ, उस पर गुफ्तगू करें। सियासी एनवायरनमेंट, असल एनवायरनमेंट, ओरिजिनल जो एनवायरनमेंट जिससे सारा कुछ ड्राइव होता है, नॉमेनक्लेचर जो है असल एनवायरनमेंट। थैंक यू जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर सियासत एनवायरनमेंट में इन्वॉल्व नहीं होती तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो वो लाजमी है, वो अक्सर लाजमी है। तो शादिया ने बहुत अच्छी बात की, लीगल व्यू दिया है इसके ऊपर।
तो जहाँ तक यहाँ पे पेरी अर्बन एरियाज में जो वाटर बॉडीज हैं उनका ताल्लुक है, तो जो भी हो, बेशक कंट्री लेवल पे हो या इस्लामाबाद रीजन में हो, कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो, उसकी सबसे जो पहला फेज है मास्टर प्लान के बाद वो है EIA। सबसे अहम डॉक्यूमेंट और जो लीगल एस्पेक्ट है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। तो जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर वाटर बॉडीज की बात की जाए तो वहाँ पर इसका ताल्लुक तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ के साथ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, वो बहुत बात आगे चली जाती है। लेकिन उससे पहले ये है कि जो कंस्ट्रक्शन हुई है उसका लीगल प्रोस्पेक्ट क्या है। जो हमने देखा है यहाँ पे, जितनी हमने रिपोर्टिंग की है, कि मोस्ट ऑफ द जो सराउंडिंग एरियाज हैं इस्लामाबाद के, एक तो सेंट्रल इस्लामाबाद है, वहाँ पे तो EIA को फॉलो किया गया है किसी हद तक, लेकिन जो सराउंडिंग एरियाज हैं इस्लामाबाद के, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर वाटर बॉडीज हैं वो आप देखें तो सराउंडिंग एरियाज में, एक्सेप्ट जो आपका रावल डैम है, तो वहाँ पे इतना ज्यादा EIA को फॉलो नहीं किया जाता। उसमें अगर कुछ बड़े लोग हैं, कुछ बड़ी काम हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि मेन इसकी जो क्लॉज है पब्लिक गैदरिंग जो की जाती है, उसमें स्टेक होल्डर्स को इनवाइट नहीं किया जाता, जस्ट एक बार में ऐड दे दिया और फुलफिल करके उसको जो रिपोर्ट है उसमें डाल दिया और उसमें काम हो जाता है, इस तरह की एक्टिविटीज। और अगर आप इस्लामाबाद का मास्टर प्लान देखें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है हमारे जो मास्टर प्लान है इस्लामाबाद का, क्योंकि शुरू से ही हमारे मास्टर प्लान में जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको इतनी ज्यादा अहमियत ही नहीं दी। उसकी एक एग्जाम्पल ये है कि आपका जो रावल डैम का सराउंडिंग एरिया है, उसमें आप अगर देखें तो बहुत सारी जो गवर्नमेंट लेवल की जो बिल्डिंग्स हैं वो ही आपके कवानीन जो हैं एनवायरनमेंट को उनको फॉलो नहीं कर रही। इवन के EPA ने एक रिपोर्ट अपनी जमा करवाई थी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने एक लिस्ट प्रोवाइड की थी, उसमें बहुत अहम बिल्डिंग्स ऐसी थी जिसमें ये बताया गया था कि उन्होंने एनवायरनमेंट के लॉज को फॉलो ही नहीं किया हुआ। और उसकी रीजन सबसे पहले ये है कि जो CDA है और जो EPA है, इनमें कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आया है, क्योंकि जो CDA जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनकी वो अप्रूवल देते हैं, उस हवाले से EPA को लूप में नहीं लिया जाता। अगर इनका कोऑर्डिनेशन का जो गैप है अगर ये खत्म हो तो इस मामले को बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता था, लेकिन अब ये मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट को इससे बहुत बड़ा खतरा है और हम लोग चुपके से आहिस्ता आहिस्ता इससे मुतासिर भी हो रहे हैं एनवायरनमेंट से, लेकिन हमें अंदाजा नहीं हो पा रहा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ ये वाटर की बात करूं, क्योंकि इस्लामाबाद का जितना भी पानी आ रहा है वो डिफरेंट बॉडी से आ रहा है, खानपुर डैम से भी कुछ पानी की कोशिश की जा रही थी लिया जाए, रावल डैम से आ रहा है, फिर असेंबली डैम है, इन तीनों जगह से हमें वाटर आ रहा है, तो पानी बहुत ज्यादा गंदा है। इसमें मेटल सॉलिड वेस्ट इतना है कि हमें कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि जो केमिकल यूज किया जाता है उससे वो जो वेस्ट है वो क्लीन नहीं होता, उस केमिकल वो साफ नहीं कर पाता। तो मैम इसके हवाले से थोड़ा बताएं कि उससे क्या किया जाए इसके ऊपर। अभी तक उस पर कुछ नहीं हो पा रहा, क्योंकि पानी जितना भी है वो बहुत कंटेमिनेटेड है, जो ह्यूमन है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। और अभी तक जितनी भी ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, खासकर जो हमारे ऊपर मारगला नेशनल हिल पार्क है, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं, क्योंकि बहुत सारे चश्मे हैं वहां से जो यहाँ पे मिलते हैं आके रावल डैम में, और यहाँ से फिर पानी लोगों को पीने के लिए मुयसर होता है। उन चश्मों में सीवरेज का पानी शामिल किया जा रहा है, उस पर अभी तक क्योंकि हमारे इन्वायरमेंटल लॉज वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किए गए और ना ही उस पर अभी फर्दर कोई डेवलपमेंट है, तो वो सारा का सारा इशू वहीं के ऊपर है। तो जितनी देर हमारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को पावरफुल नहीं किया जाता, उसकी एनफोर्समेंट नहीं की जाती उसको, तो आई थिंक कुछ भी यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो सकता। Thank you very much, Abid sir. Just for the English speaker, he has just said that environmental impact
assessment, EIA should be made mandatory, because Islamabad is a place where it is joined by many streams coming from uphill, and that is enjoined in the Kurang River, and that is the potable water for the drinking water for the population. And when they are contaminated, it is mixed with heavy metal and all other sort of impurities and dangerous metal, and which is a grave concern to the health of the community and other things. So primarily, he has emphasized on the EPA to ensure through legislative work and administrative work that EIA should be made mandatory and it made compulsory. And CDA should take this work while the new construction is taken on. Thank you very much. And बहुत बहुत शुक्रिया. इससे आगे स्पीकर कलीम साहब, आपको तो हम फिलोसॉफिक टच के लिए बाद में रखते हैं, जैसे डॉक्टर आबिद ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ह्यूमन बिहेवियर को इसमें किस तरह ऐड किया जाए. तो उससे पहले मेरा ख्याल है जैसे हम पूछते हैं, मैडम थोड़ा सा ये बताइए कि क्या चैलेंजेस हैं आप और किस तरह आप उस चैलेंजेस में से अपॉर्चुनिटी जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अभी ले लो. पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. मोजा लखवाल की आबादी का मंजर है जो कि रावल झील के किनारे पर वाक़ है. यहाँ पर काफ़ी आबादी है और तकरीबन तमाम घर नए बने हुए हैं. मोजा लखवाल की तमाम ज़मीन CDA की मिल्कियत है. इस तमाम गैर कानूनी तामीर होने वाली आबादी में किसी किस्म का भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और नतीजे के तौर पर तमाम गंदा पानी और फजला झील की नज़र कर दिया जाता है. झील के किनारे गैर कानूनी छोटी छोटी तफरीह गाहें भी बनाई जा रही हैं. इसी CDA की ज़मीन पर फ़िश फार्मिंग भी हो रही है और मछलियों को दी जाने वाली खुराक झील में शामिल हो जाती है. 7 जुलाई 2017 को हज़ारों मछलियों की हलाकत की एक ये वजह भी है. आबादी का कूड़ा करकट भी झील के इर्द गिर्द नज़र आ रहा है जो बारिश के पानी के साथ झील में शामिल होकर पानी की आलूदगी का बाइस बन रहा है. इस्लामाबाद के चंद और सेक्टर्स की तरह शादी हॉल और मार्कीज़ की तामीर की जा रही है जिनकी किसी भी किस्म की माहौलियाती इजाज़त हासिल नहीं की गई है. ये डॉक्टर अब्दुल कदीर रोड नज़द मोजा लखवाल पार्क लेन की आबादी है. इस आबादी में तमाम नए और बड़े घर बने हुए हैं और मज़ीद घर बनाने के लिए काफ़ी प्लॉटों की 4 दीवारी भी नज़र आ रही है. इस आबादी का इस्तेमाल शुदा पानी भी करीब वाक़े रावल झील में जाता है. फैज़ाबाद से मरी जाते हुए 12 खूह में दाखिल हों तो ये नाला आता है जिसका पानी आगे जाकर कोरंग नाले में गिरता है. इर्द गिर्द के घरों का फजला और इस्तेमाल शुदा पानी इसी नाले में आ रहा है और नाले में पड़ी गंदगी से ये अंदाज़ा लगाना बहुत आसान है कि इर्द गिर्द के लोग कूड़ा करकट भी इसी नाले में फेंकते हैं. इस नाले में न सिर्फ राइट ऑफ वे पे तामीरात की जा रही हैं बल्कि बगैर किसी ट्रीटमेंट के फजला भी इन इमारतों से इन नालों में फेंका जा रहा है और इन नालों में शादरा नाला, जिना नाला और गुमकस नाला शामिल हैं. यहाँ पर की जाने वाली तमाम तामीरात गैर कानूनी हैं जिनमें उस्मानिया होटल, उमानिया होटल, फर्नीचर के शोरूम और 2 CNG भी शामिल हैं. सबसे पहले आर्जी तौर पर दीवारें खड़ी की जाती हैं और बाद में इमारतें तामीर कर दी जाती हैं. बनी गाला में इस वक्त न सिर्फ छोटे घरों की तामीर की जा रही है बल्कि कई मंजिला इमारतें और तिजारती मराकज़ और कंटेनर्स के वेयर हाउस भी बनाए जा रहे हैं. 12 खूह से सिमली डैम रोड पर जाएं
तो आगे ये दरियाए कोरंग का पुल आता है। दरिया का रकबा दोनों तरफ से इंक्रोचमेंट की वजह से सुकड़ चुका है और दरिया पे कब्जा करके दरिया को नाला बना दिया गया है। इर्द गिर्द की आबादी का इस्तेमाल शुदा गंदा पानी दरियाए कोरंग के ज़रिए रावल झील में जा रहा है। दरिया के अंदर रिटेनिंग वॉल बनाकर दोनों तरफ से कब्जा किया गया है। यहाँ पर 15 से 20 घरों पर मुश्तमिल हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बनाई जा रही हैं। दरिया की ज़मीन पर एक ब्लॉक फैक्ट्री भी बनाई गई है। सिमली डैम को जाने वाला रास्ता भी इसी तरह की तबाही का शिकार होता जा रहा है। ये दरियाए कोरंग का मंजर है जो 12 कुओं की आबादी से गुजर रहा है। इस मंजर में देखा जा सकता है कि लोग मज़ीद नए घर दरिया के अंदर बना रहे हैं और रोज़ बरोज़ दरिया की ज़मीन पर कब्ज़ा बढ़ता जा रहा है। इस दरियाए कोरंग में की जाने वाली तामीरात में किसी किस्म का भी सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है। मरी रोड से बनी गाला की तरफ जाएं तो ये दरियाए कोरंग के ऊपर बने हुए पुल के इर्द गिर्द का एरिया है। अगर इस के पानी के रंग को और इसमें बनने वाली झाग को देखें तो ये अंदाज़ा लगाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती कि ये आबादी का इस्तेमाल शुदा गंदा पानी है जो कि रावल डैम में जा रहा है। ये दरियाए कोरंग के इर्द गिर्द बनी गाला की आबादी के मनाजिर हैं और इस आबादी का आलूदा पानी इसी दरिया के ज़रिए रावल झील में शामिल होता है और पस मंज़र में झील भी देखी जा सकती है। आपकी रिहाइश किधर है? इस्लामाबाद में। जैसे बनी गाला पूरे इस्लामाबाद क्योंकि जिस किस्म की जिम्मेदारी दी गई है तो उस लिहाज से मैं समझती हूँ कि ईपीए इस्लामाबाद में हर जगह रह रहा है और एज ए हेड ऑफ द ईपीए आई फील मोर कि मुझे इस्लामाबाद के एक एक इंच की अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं एसडीपीआई का शुक्रिया अदा करूँगी और आज मेरे ख्याल में हम ओपन एंडेड डिस्कशन की बजाय हम क्लोज डिस्कशन में हैं और आज हमने विद इन बॉक्स सोचना है, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचना, जो हम बड़े फोरम पे बैठ के बात करते हैं। और मैं समझती हूँ आज हम इस्लामाबाद का मुकदमा लेके बैठे हैं कि बड़ा अरसा गुजर गया था, हम पूरे पाकिस्तान की इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज, ब्रदर पूरी दुनिया की क्लाइमेट चेंज पे बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में क्या हो रहा है हमें ये नजर नहीं आ रहा। नजर आ रहा है तो उसको हम प्रॉपर टैकल नहीं कर पा रहे। अगर टैकल कर पा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा टूल कहाँ हमने इस्तेमाल करना है और किस फोरम पे क्या चीज हमने हाईलाइट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज फील करती हूँ कि आज की इस फोरम में इस्लामाबाद के मुकदमे में हमारा मेन स्टेक होल्डर सीडीए यहाँ नहीं है। सीडीए का यहाँ मौजूद होना इसी तरह जरूरी था जैसे किसी मरीज को कोई ड्रिप लगाने के लिए नर्स की जरूरत होती है। उनके बगैर इस इस्लामाबाद का इलाज नहीं किया जा सकता क्योंकि सारा पैरामेडिक फैसिलिटी सब कुछ सीडीए के पास मौजूद है और जब तक सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी पे सही तरीके से अमल पैरा नहीं होगी, ना तो कोई लीगल टूल, ना कोई सिविक सोसाइटी, ना कोई प्राइवेट सेक्टर और ना कोई रेमेडी, ना कोई जर्नलिस्ट उस पे उस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज जो है हम लोगों की कोऑर्डिनेशन। मैं सीडीए का नाम लेके ये नहीं कहूँगी कि मैं वो बड़ी जिम्मा कर रही हूँ ईपीए को, लेकिन शाजिया साहिबा ने सही तौर पे बात की कि आपस में हमारी कोऑर्डिनेशन कितनी है। आबिद ने भी बात की इस पे। वाकई मेरे ख्याल में आज से बहुत अरसा पहले तक ये चीज महसूस नहीं की गई थी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को आपस में किस हद तक मिलके काम करना है और अल्टीमेटली मैंडेट क्या है। लेकिन अब अगर हम बात करें किसी भी एस्पेक्ट की, आप जंगलात लगाने की बात करें, आप एक पुल बनाने की बात करें, आप सड़क बनाने की बात करें, आप कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाने की बात करें, आप एक कुआं खोदने की भी बात करें,
इस वक्त इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हर चीज में क्रॉस कटिंग में है और अनअवेलेबल हो चुका है हमारे लिए हम सब इदारों का मिलके बैठना। मैं पूरे इस्लामाबाद की बात नहीं करूंगी, 18 अमेंडमेंट की बात हुई है। एक चीज आप सबके तवज्जुह से क्लियर करना चाहूंगी कि 18 अमेंडमेंट से पहले भी हमारे जितने प्रोविंशियल ईपी हैं या फेडरल ईपी है, हम सब की वर्किंग जो है पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के तहत होती थी और उसमें हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फेडरल गवर्नमेंट ने पावर्स डेलीगेट कर दी थी। सो 18 अमेंडमेंट से पहले भी वो इंडिपेंडेंटली काम करते थे, उसमें किसी किस्म की भी मुदाखलत नहीं होती थी, सवाए इसके कि हमारा कानून एक था, हमारी जिम्मेदारियां मुश्तरका थी और हम उस वक्त एक दूसरे के काम के जवाबदेही थे कि अगर सूबे में काम नहीं होता था तो बहुत हद तक उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है जवाबदेह थी उसमें। लेकिन अब 18 अमेंडमेंट के बाद वही कानून जो फेडरल लेवल पे 1997 के तहत था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको अडॉप्ट करके अपने अपने रेलेवेंट लेजिस्लेशन का नाम दे दिया। सो किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में 3-4 चीजें एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं। डेवलपमेंट में अच्छी प्लानिंग, इस्लामाबाद के अगर मास्टर प्लान की हम बात करें तो हमारा मास्टर प्लान दुनिया का बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। आज भी अगर आप चले जाएं डेवलप्ड कंट्री में, 2011 में मुझे जापान जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे उन्होंने मुझसे प्रेजेंटेशन मांगी थी इस्लामाबाद के सेटअप के बारे में, इस्लामाबाद के रोड नेटवर्क के बारे में कि इस्लामाबाद का रोड नेटवर्क इतना आइडियल है कि आज भी आप देखें 1964 के बाद मेरे ख्याल में अर्ली 80s में हमने वो येलो बसें चलानी बंद कर दी थी, लेकिन चंद दिन पहले पीएम ने जब इनॉग्रेशन की है ग्रीन और ब्लू बसेस की, तो विद इन इस्लामाबाद वो बसें चलाने के लिए हमें रोड नेटवर्क में कोई चेंज नहीं करना पड़ा। तो हमारा इस्लामाबाद का रोड नेटवर्क आज भी ऐसा बना हुआ है कि हम मास ट्रांजिट सिस्टम इसमें आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं विदाउट एनी चेंज ऑफ द रोड नेटवर्क, और हमारी सड़कें इस लोड को अफोर्ड कर सकती हैं। तो प्लानिंग स्टेज की बात अगेन इस्लामाबाद मास्टर प्लान में बाकी चीजें भी हम देखें तो कहाँ हमारा इस्लामाबाद मास्टर प्लान से हम इनहिराफ किया या कहाँ हमारा उसके कोई कंट्रोल खत्म हो गया। अगर हम दही इलाकों की या इस्लामाबाद की सराउंडिंग की बात करें तो इस वक्त 12 करोड़, और मैं एक और मुकदमा भी यहाँ आज रखूंगी, हम तरनौल के एरिया की बात नहीं कर रहे, वो भी इस्लामाबाद का हिस्सा है, टिल निकलसन मॉन्यूमेंट, तो हमने उसके बारे में क्या बात कर रही है। आज 12 करोड़ का हम बात करते हैं कि 12 करोड़ हमारे पार्लियामेंट से हार्डली 2-3 किलोमीटर के फासले पर है, लेकिन अगर तरनौल की बात करें जो 25 से 30 किलोमीटर का फासला बनता है हमारे पार्लियामेंट से, वो हमारा इस वक्त एशिया का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन मशीनरी का गढ़ बन चुका है। और क्या हमारे पास ये पोटेंशियल है कि कल को हम उसे वहां से रिमूव करके कहीं और रिलोकेट कर सकें, या इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिमोलिश करके लैंड एक्वायर कर सकें। सो बियॉन्ड द बॉक्स जो मैंने ये बात की थी, विद इन बॉक्स इस्लामाबाद के और बियॉन्ड द डेवलपमेंटल इस्लामाबाद के हमें सोचना चाहिए पड़ेगा। फिर इस्लामाबाद में इस वक्त हम जितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मैं आबिद की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि शायद हमारा इस वक्त कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बहुत कमजोर है। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म स्पेशली CDA, EPA और हमारा प्लानिंग कमीशन, और फिर मैं कहूँगी कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपमेंट सेक्टर को लेके हमारे साथ चल रही है, कि हमें हर प्रोजेक्ट पे पहले से मिलके बैठने की जरूरत है ताकि हम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इस्लामाबाद एंड द फ्यूचर ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान मिलके काम करें। अदरवाइज अगर हम स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स को डील करते रहेंगे तो पिक एंड चूज बेसिस पे हम ये काम नहीं कर सकेंगे। तो ये एक मैं फिर कहूंगी कि CDA की प्रेजेंस और नेक्स्ट सेशन जरूर हम इस पे रखें कि जिसमें हम बात करें, और CDA के साथ हमारा एक और स्टेक होल्डर है ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो CDA अगर नहीं डील कर रहा तो वो ICT कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की इस्लामाबाद की, तो कोटा ट्रायंगल पे जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हमारा ICT एडमिनिस्ट्रेशन डील कर रही है। हमने इस्लामाबाद की इस वक्त देखें तो H13 में हमारी मशरूम ग्रोथ हो रही है छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज की, उसको हम कैसे टैकल करेंगे। इस वक्त अगर हम ओवरऑल बात करें, और बड़ी राइटली पॉइंट आउट किया गया था कितने % प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे EIA के टूल को
यूज कर रहे हैं। और सेकंड, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि जिस तरह सीडीए के लॉ में कुछ प्रोविजंस हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट इस तरह का या कोई हाउसिंग सोसाइटी डेवलप हो रही है तो सीडीए उसमें एक खास एरिया प्लेज करते हैं 20%, और उस प्लेज किए हुए एरिया को वो बेसिकली तो उन्होंने यूज करना होता है मस्जिद के लिए, स्कूल के लिए या इस पर्पसेस के लिए, लेकिन वो पेनल्टी के तौर पे भी सोसाइटी से या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट से उनका प्रोसीजर मौजूद है। जबकि साइमल्टेनियसली अगर मैं इसको कंपेयर करूं हमारे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन में, तो पावर्स तो मौजूद हैं लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म थोड़ा सा ज्यादा लीगल तरीके से, कि हम जब सेक्शन 12 की वायलेशन देखते हैं तो सेक्शन 12 की वायलेशन के बाद हम सेक्शन 7F के तहत नोटिस देते हैं। नोटिस की हियरिंग के बाद हम सेक्शन 16(1) के तहत पर्सनल हियरिंग देके उनको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड इन पर्सन। हमारा लॉ कहता है कि आप किसी बंदे को अनहर्ड ट्रायल में नहीं जा सकते, अनहर्ड ऑफ पनिशमेंट नहीं दे सकते। सेक्शन 16(1) एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू करने के लिए पहले हियरिंग करके उसके बाद सेक्शन 16(2) के तहत हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू कर देते हैं। अब इसमें जो मैकेनिज्म है हमारा, अनफॉर्चुनेटली बड़े अरसे बाद फर्स्ट टाइम हुआ है कि इस्लामाबाद के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में डेडिकेटेड जज अपॉइंट हुए हैं। अदरवाइज बहुत अरसे से एडिशनल चार्ज बेसिस पे हमारे जज अपॉइंट होते थे और बड़ी देख रहे थे हमारे केसेस को, बड़े साल से इफेक्टिवली चल रहा था, लेकिन इस वक्त डेडिकेटेड है और अब ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता हमारे ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे होते हैं। लेकिन जब एक केस कोर्ट में चला जाता है तो दो तरह के प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो होते हैं, या सिविल प्रोसीजर होता है या सीआरपीसी के अंडर होता है। तो उसमें कितना टाइम लगता है किसी केस के डिसीजन में, उतनी देर तक या तो प्रोजेक्ट चलता रहता है, काम नहीं रुकता, और अब उसको रिवर्ट बैक या अंडू कैसे किया जा सकता है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। फिर एक और लीगल प्रॉब्लम है कि अक्सर हम बात करते हैं कि क्या इन्वायरमेंटल अप्रूवल एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया जाता है या वाकई ही इन्वायरमेंटल अप्रूवल या EIA की कोई एक इम्पोर्टेंस है। तो इसमें अभी रिसेंटली मिर्जा साहिद बेग केस की जजमेंट आई है हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, केस नंबर 4245 ऑफ 2014, और बड़े एक मैं कहूँगी कि लैंडमार्क जजमेंट है, लॉन्ग जजमेंट रिलीज हुई है लास्ट वीक में, और जिसमें जो जजमेंट स्टार्ट ही हुई है उसकी जो पहली वर्डिंग ही है, अगर मैं वो आपके साथ शेयर करूं, इमेजिन द प्लेनेट विदाउट इकोसिस्टम सर्विसेज। ये वो लैंडमार्क जजमेंट है जो स्टार्ट ही इससे हो रही है कि आप इमेजिन कर लें इस प्लेनेट में जिसमें कोई इकोसिस्टम ना हो एंड द हैबिटेट्स क्रिएटेड बाय द नेचर। तो जब हमारे पास अब ये लीगल टूल आ गया, इतनी स्ट्रॉन्ग जजमेंट आ गई, सेकंड क्वेश्चन आता है इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट किसने करना है। सो लीगल जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। EPA की अगर बात करें तो EPA के पास आज दिन तक पुलिस मौजूद नहीं है। कुछ केसेस में बाज़-औक़ात ये हुआ टेम्परेरी तौर पे 1 या 2 पुलिस के लोग दिए गए, लेकिन आज भी EPA डिपेंडेंट है इन्फोर्समेंट के लिए अपने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के ऊपर और इस्लामाबाद पुलिस मैनेजमेंट के ऊपर। मेरे साथ कलीम इमाम साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ बहुत अच्छा हमारा इंटरेक्शन रहा माजी में जब ये हेड कर रहे थे यहाँ इस्लामाबाद को, और इन्होंने बहुत ज्यादा हमारे साथ कोऑपरेशन भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाज़-औक़ात बड़ी मुश्किल हमें पेश आ जाती है जब हमारे लोग इन्फोर्समेंट के लिए कहीं फील्ड में जाते हैं, बगैर पुलिस के होते हैं, बगैर यूनिफॉर्म बंदों के, तो टफ टाइम मिलता है उन्हें, और काफी दफा जो है पब्लिक की तरफ से या वहाँ पे जिन लोगों ने वायलेटर्स की तरफ से काफी हरास भी किया गया। और ये चीज काफी अरसे से हम इस्लामाबाद पुलिस के साथ भी शेयर कर रहे हैं कि हमें परमानेंट बेसिस पे पुलिस दी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट सक्सेसफुल इन दैट। तो अब एक इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसके पास अपनी फोर्स नहीं है, मैं इसमें जरूर जिक्र करूंगी यहाँ पे अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में हमारी मिनिस्टर मैडम शेरी रहमान साहिबा ने और हमारे सेक्रेटरी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आज मैंने प्रपोजल सबमिट करवाया है उन्हें, जिसमें EPA अपनी इन्फोर्समेंट टीम प्रॉपर इंस्पेक्टर की शक्ल में लाना चाह रही है।
اور یہ ان کی طرف سے یہ ہمیں آیا ہے کہ آپ بنا کے دیں ہمیں پروپوزل، اور یہ پروپوزل ابھی انیشل سٹیج پہ آج منسٹری کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. لیکن جب تک لا کتنا بھی سخت موجود ہو، جب تک آپ کو اس کو فیلڈ میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہوگا، آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اچھا ہیومن ریسورس کسی بھی افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا اس میں جو میں بات کر رہی تھی کہ انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کی کتنی ضرورت ہے، تو سم ٹائمس بہت سارے ایسے ہمارے پاس پروجیکٹس آتے ہیں جو پروجیکٹ تقریباً 70% کام ہو چکا ہوتا ہے. جب ہم عدالتوں میں ان کا مقدمہ لے کے جاتے ہیں، میں شازیہ آپ کے لیے اسپیشلی، تو وہاں سے کہا جاتا ہے جی اس کو ای پی اے ریویو کرے ان اکارڈنس ود دا لا. لا کا سیکشن 12 کہتا ہے نو پروپوننٹ شیل کمنس any construction oblique project without prior approval. اب جب کام شروع ہو چکا ہے تو وہ prior approval کا ورڈ کہاں گیا؟ EPAs are not meant to be the rubber stamp. To agree with a constructed or a carried out project جس پہ 70% کام ہو چکا ہے. Basically environmental impact assessment کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پروجیکٹ میں کوئی environmental damages ہونے ہیں، ان کی کوانٹم کیا ہے، اور اس کو دیکھ کے اور اس کے اکارڈنگلی اس میں کوئی چینجز پرپوز کرنی ہے وہ کریں. میں اگزامپل دوں گی ایک بہت اچھی، اس پاکستان میں ہی اسلام آباد میں ہوا ہمارا پولی کلینک ہاسپٹل، فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہاسپٹل، اس کی ایکسٹینشن الاؤ کی گئی ارجنٹینا پارک کے اندر. اب بہت سارے لوگوں کی نالج میں یہ چیز نہیں ہوگی، طاہر صاحب بڑے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. 2013 میں 2013 سے لے کے 2019 تک ای پی اے یہ مقدمہ عدالت میں لڑتا رہا، اور اینڈ آف دا ڈے اسی کورٹ سے جس کے ابھی میں نے ورڈز پڑھ کے سنائے ہیں وہاں سے ہمیں ججمنٹ ملی، اور 70 پیجز کی ججمنٹ ہے کہ ارجنٹینا پارک 1971 میں بنگلہ دیش کے جو ایشو ہوا تھا اس پہ ارجنٹینین گورنمنٹس کے ساتھ ایک لینڈ مارک کے طور پہ، ایک یکجہتی کے طور پہ یہ پارک ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا. اس پارک کو ختم کر کے یہاں پہ ہاسپٹل نہیں بنایا جا سکتا، اور اس کی سکسیس سٹوری یہ ہے کہ وہاں پہ بنی ہوئی دیوار ڈیمالش کی ہم نے. ارجنٹینا پارک رائٹ ان دا سینٹر آف دا اسلام آباد، اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا، اور اب وہ اسپتال جو ہے گورنمنٹ نے زمین ایلوکیٹ کی ہے وہ G11 ماو ایریا میں بننے جا رہا ہے. سو انوائرمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پروجیکٹ جیسا جہاں بن رہا ہے اس کو ایسا جو ایسا اپروو کر دیں. انوائرمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لینڈ یوز ہمارا چینج ہو رہا ہے کسی ایسی جگہ جہاں ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہم کوئی آلٹرنیٹ کریں. لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ وہیں پہ پروجیکٹ بن جائے. یہ تو گورنمنٹ سیکٹر میں بہت حد تک ہماری کمپلائنسز ہیں. میں اگر بات کروں اسلام آباد کے اندر ہی پرائیویٹ سیکٹر، انفارچونیٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا یہ ہے کہ وہ 100% کمپلائنسز ہمیں نہیں دے رہے. تو یہاں پہ میں دوبارہ بات کروں گی کہ جب CDA کے ساتھ مل کے پرائیویٹ سیکٹر کو ہم ریگولیٹ کرنا چاہیں گے تو اس وقت ضرورت ہے ہماری آپس میں کوآرڈینیشن کی، اور آئی ایڈمٹ دیٹ ہماری کوآرڈینیشن بہت ساری چیزوں میں کافی ویک ہے. یہاں ایک اور بات کی تھی مس شازیہ نے، میں اس میں بات کروں گی. ہمیشہ ایک فرق ہمیں سمجھنا چاہیے، امپلیمنٹنگ ایجنسی کون سی ہے، ریگولیٹری ایجنسی کون سی ہے. CDA از اے امپلیمنٹنگ ایجنسی اور ڈیولپمنٹ ایجنسی. اپنے ہی کام کے لیے وہ ریگولیٹر نہیں ہو سکتے. ان کے کام کو یا کسی بھی اور سیکٹر کے کام کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی چاہیے، دیٹ از اے ای پی اے. ای پی اے کسی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ یہاں لانچ نہیں کر رہی، کوئی سیکٹر نہیں لانچ کر رہی، کوئی روڈ نہیں لانچ کر رہی، لیکن اس پہ ہم ورکنگ کرتے ہیں. اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو ہے ہمارے لا میں مین مینڈیٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. اور اس فورم پہ میں ایک سجیشن دینا چاہوں گی، اور SDPI عابد صاحب بیٹھے ہوئے ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ کچھ لیجسلیشن، اور میڈم رومینا سے بھی ڈسکس کروں گی، ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ایگزیکٹو آرڈر اسلام آباد کا مقدمہ جیت سکتے ہیں. اگر آج اس فورم سے ہم ایک ریکمنڈیشن دے دیں، کسی قسم کا بھی اسلام آباد میں کوئی بھی پروجیکٹ لگایا جائے گا اس میں کسی قسم کا کوئی بینین ٹری نہیں کاٹا جائے گا. جو ہیریٹیج ہے اسلام آباد کی، کسی قسم کا کوئی بیری کا درخت نہیں کاٹا جائے گا، وہ بھی ہماری ہیریٹیج ہے. پائن ٹریز اب اگنے ختم ہو گئے اسلام آباد میں.
किसी किस्म का पाइन ट्री नहीं काटा जाएगा। तो ये छोटा सा हमारा एक डिसीजन जो है इस्लामाबाद में बहुत हद तक हमारी ग्रीन एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। हम दुनिया के बहुत सारे शहरों की एग्जांपल देते हैं। अगर चेन्नई सिटी में हम देखें तो चेन्नई सिटी के अंदर बैनियन दरख्त काटना जुर्म है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट लॉ के तहत कहीं पे दरख्त काटने का छोटा मोटा जुर्माना किया जाता है 500 के करीब, जबकि उस दरख्त को मैच्योर होने में 500 साल भी लग जाते हैं। और बैनियन ट्री ऐसे दरख्त हैं, बोर्ड के दरख्त जिनको हम कहते हैं, कि इस्लामाबाद में अब गिने चुने हमारे पास रह गए हैं और ये हमारी हेरिटेज ट्री भी हैं। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट होगी इस फोरम से। एक और बात मैं आखिर में शेयर करना चाहूँगी, अक्सर मैं कहती भी हूँ कि नाला हूँ बेदारी ये एहसास के हाथों, दुनिया मेरे अफकार की दुनिया नहीं होती। हम सब यहाँ जो मिलके बैठे हैं डेफिनेटली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के जहाज में हिस्सा लिए, लेकिन ये उस वक्त तक सक्सेस नहीं हो सकती जब तक हर लेवल लीगल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, पॉलिटिकल सपोर्ट और प्राइवेट सेक्टर हमारा और पब्लिक इसमें मिलकर हिस्सा ना डालें। इसकी एक एग्जांपल हमने इस्लामाबाद में इस वक्त प्लास्टिक बैग, शॉपिंग बैग बैन किए थे और अक्सर कहा जाता है कि वो अभी तक इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि EPA जो है थानेदार की तरह हर सड़क पे, हर दुकानदार के पास, हर शॉप में जाके वो बोलेगा शॉपिंग बैग बैन है, इस्तेमाल मत करें। हमने यहाँ रवैये तब्दील करने हैं, जो सर ने भी शायद इस पे बात करनी है, लेकिन एज ए सोसाइटी हमारा रवैया इसकी तरफ कैसा है। और इस्लामाबाद इज नॉट द ऑर्डिनरी सिटी ऑफ द कंट्री, इट्स अ यूनिक सिटी एंड वी हैव टू मेंटेन इट्स यूनिकनेस। जो दुनिया के प्लान सिटी में, मैंने आपके साथ बात शेयर की 2011 में जब मैं टोक्यो में थी, तो वहाँ कुछ प्लानर्स ने मेरे साथ डिस्कशन की कि न्यू टोक्यो सिटी वो बनाना चाहते हैं क्योंकि टोक्यो सिटी के अंदर उनका बहुत कंजेशन हो चुकी है। तो उन्होंने कहा हम इस्लामाबाद का मॉडल स्टडी कर रहे हैं इसमें, और आज हम इस्लामाबाद के मॉडल के साथ क्या कर रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो 25 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर डेवलप्ड है। उससे बियॉन्ड हम बात करने लग पड़े हैं स्लम्स एरिया। अगर हम बाराको की बात करें, हम सवा गार्डन के एरिया की बात करें, अगर हम E11 में लास्ट ईयर फ्लडिंग की बात करें, तो वो किस चीज का नतीजा है? वो सारी हमारी पुअर प्लानिंग का नतीजा है या हमारी डेवलपमेंट को प्रायोरिटी ना रखने का नतीजा है। और अगर कराची शहर में हम बात करते हैं जहां हमारी 2-2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, तो 22 लाख की आबादी में भी इंक्रोचमेंट हो रही है। अब इस इंक्रोचमेंट को किसने रोकना है, कहाँ रुकनी है? दिस इज द क्वेश्चन टू दिस फोरम बाय माई सेल्फ। कौन रोकेगा इस इंक्रोचमेंट को? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ड्राइव चाहिए इस इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए? ऑर्डर मौजूद है कोर्ट की। हम ये नहीं कह सकते कि हमें अदालतें जो हैं वो इस पे सपोर्ट दें। अदालतें अपना काम कर चुकी हैं, अब इदारों का काम है वो मिलकर अपना फर्ज अदा करें और जिसके लिए हम बने हुए हैं हम वो काम करें। लेकिन अदारों की कैपेसिटी क्या है, अदारों की कैपेसिटी कैसे बिल्ड होनी है? दिस इज अ क्वेश्चन। और इसके साथ मैं एक दफा फिर कहूंगी कि इस्लामाबाद का मुकदमा आज शुरू हुआ है, लेकिन ये चलता रहना चाहिए। कम से कम कुछ ना कुछ तो हम आइंदा आने वाली नस्लों को दे सके। इस्लामाबाद में तो इस वक्त नलके का पीने का पानी भी साफ नहीं। थैंक यू। कलीम साहब को सुनने पे सेकंड। हाँ, कलीम साहब उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ा वैल्यूएबल था। क्विकली 2-3 पॉइंट्स जो आपने किए उन्होंने ट्रांसलेट कर दूं। And the most important point is that CDA should have been here, and CDA is responsible. They need to implement, and they are the development partners, and EPA is a regulator. Second, there should be closer coordination between and among all the departments, including the Planning Commission. So even the macroeconomic planning should take it in their ambit. And the last thing is, I think these were the 2 principal things. And yes, 2 principal things. And the third thing was that micro focus should be very sharp on different areas like Barako and Altaf as well.
and it should come into force when the project starts, not when the 70% is built, and we leave the whole thing to as a, what they call it, as fait accompli. And now this case is beginning from this. And one small recommendation we should give, that no banyan tree, no berries, no pine trees should be cut. Road alignment should be altered, whatever. Thank you very much, and that was very valuable. With this, I would request Mr. Kalim Imam Sahab, और ज़ाहिर है क्लियर है जो आपने बातचीत आपको पता है आपने जो करनी है. मैं एक छोटी सी चीज आपके नोटिस में ला के उसको भी चाहूंगा कि आप एड्रेस करें, क्योंकि मेन आपकी सर्विस जो है वो पुलिस थी. मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो कब्जा होता है ये बगैर थाने की इन्वॉल्वमेंट के कभी नहीं हो सकता. SHO और थाना अगर इन्वॉल्व ना हो तो कब्जा कामयाब नहीं हो सकता. तो पुलिस का कहाँ कहाँ कामयाबी हुई है और कहाँ कहाँ फेलियर होता है इसमें, और पुलिस के एक्ट में या थाना कल्चर को ये किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए. ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 90% मैंने देखा है, कम से कम ये बनी गाला और इस तरफ तो मैंने देखा है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है नाले के अंदर सारा वो कब्जा होता है पहले थाने की मदद से. दैट इज द ट्रिगरिंग पॉइंट. ओवर टू इट सर. Sir, thank you very much. Abid sir, thank you very much for inviting Tahir sir and very respectable panelist over here. सबसे पहले तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ का माहौल अच्छा करना चाहिए. तो एक क्लासरूम का माहौल मुझे लग रहा है कि लोग जो है वो थोड़े से फ्रॉन हैं, थक गए हैं. तो लेट्स सी some good vibes coming from your faces, you know. क्योंकि मैं जहाँ बोलता हूँ मैं देखता हूँ कम से कम आंखों में चमक तो आए, और जब आंखों में चमक आएगी तो आगे बात कर सकते हैं. तो हम अगर यहाँ का माहौल अच्छा करेंगे तो हमें उम्मीद है जो माहौल कहीं खराब हो रहा है तो हम उस माहौल को भी अच्छा करने में कामयाब हो जाएंगे. मेरा मतलब एक गेट टुगेदर में चमक तो आए ना, जिससे आपकी आंखों में पाइन ट्री के नाम से एकदम से चमक आ जाए. आपने कहा उनका उगाने, आपने कहा बिल्कुल नहीं उगाने. तो एक कम से कम वाइब्स आई और मजा आया सुनने में कि वी आर अलर्ट एंड सिटिंग ओवर हियर. लेकिन जी सबसे पहली चंद बातें मैं करूंगा और आखिर में बोलने का कुछ फायदा और नुकसान दोनों होता है. एक ये कि सारी बातें हो चुकी हैं तकरीबन और ये सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो मेरे लिए कोई नई बात करना कोई ज्यादा इतना आसान नहीं होगा. लेकिन मैं कुछ बुनियादी बात करना चाहूंगा और जो उन्हीं का मजमूआ है आप समझ लें. बेसिकली एक तो मुझे कश्फुल माजूब वो बात याद आती है कि जो हम जानते हैं वो तो करते नहीं, तो फिर हम जानना क्यों चाहते हैं. हम सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, हम सब जानते हैं चीजें कैसे अच्छी हो सकती हैं, क्यों खराब हो रही हैं, क्यों कब्जे हो रहे हैं, कहाँ ये पानी आ रहा है जा रहा है, कैसे कॉलोनीज बन रही है, हम सबको पता है. सवाल ये कि जिसने ये काम करना है वो क्यों नहीं कर रहा, और जो नहीं कर रहा उसका एहतसाब क्यों नहीं हो रहा, और कोई तीसरा शख्स वो काम करने की क्यों कोशिश कर रहा है, और जिस शख्स ने काम करना है उसकी हम सलाहियत में क्यों नहीं इजाफा कर रहा है. जिस तरह डॉक्टर फरजाना ने बात की कि कोर्ट ऑर्डर दे रही है, बता रही है, यानी अगर दो बंदे के दरमियान कोई मसला भी था तो फैसला आ गया, उसके बावजूद हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहे. ये बदनीयती आ कहाँ से रही है, नीयत हमारी ठीक क्यों नहीं है. सारी चीज जो है बुनियादी तौर पे नीयत पे मबनी. जिन लोगों की जिम्मेदारी है काम करना, जिन लोगों की जिम्मेदारी है चीजों को ठीक करना, क्या वो ये काम कर रहे हैं, ये सबसे पहला सवाल है. क्योंकि अब आप कहेंगे जी सारी उम्र आप पुलिस में रहे, आप तो पुलिस ठीक नहीं कर सके. हमने कहा हमने कोशिश तो की ना ठीक करने, लेकिन इस किश्ती में बहुत से लोग छेद कर रहे हैं और इसकी सिम जो है चेंज कर रहे होते हैं. लेकिन इसमें बहुत से ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो पानी निकाल रहे हैं और मना कर रहे होते हैं कि छेद ना करें. तो हम सब की जिम्मेदारी है कि जो ऐसा काम कर रहे हैं छेद करने वाले, उनको रोकें, उनको समझाएं. जिस तरह एक बात हुई, कानून बहुत है, हमें सिविलिटी की तरफ तो कभी जाना ही नहीं चाहिए. हमें कानून में सर्टेनिटी की तरफ जाना चाहिए कि जैसी कोई चीज हुई फौरन सजा हो, जैसे किसी ने कोई बात हुई उसका एहतसाब हो. हम ये नहीं कर रहे हैं. हम कह रहे हैं इसको 6 दफा हम फांसी चढ़ा देंगे, 10 दफा इसको ये कोड़े देकर, इससे नहीं होगा. सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये कि लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि रियासत को वो ये एम्पावर कर रहे हैं कि आपको हम ये पावर देते हैं कि आप जो है निजाम दुरुस्त करें, आप हुक्मरानी करें. हम उसके जवाब में अपने कोई प्रिविलेजेस सरेंडर कर दें और उसमें आपकी जिम्मेदारी है आप कि आप उन चीजों को ठीक करके दिखाएं. क्या ये हो रहा है, ये एक बुनियादी सवाल है. अब हम इस पे आ जाते हैं कि ये इंक्रोचमेंट होती क्यों है, ये लोग आते कहाँ से. बुनियादी तौर पर हम सब की वजह से इंक्रोचमेंट हो रही है. हमें इन सारे लोगों की जरूरत है घर में काम करने. हमें खानसामा भी चाहिए, हमें सफाई करने वाला भी चाहिए, हमें तरकान मजदूर भी चाहिए. तो क्या हम कभी सोचते हैं कि ये रहेंगे कहाँ,
یہ جائیں گے کہاں؟ ہم آپ کسی اچھی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں، لاہور کی ڈی ایچ اے چلے جائیں، کراچی کے ڈی ایچ اے میں چلے جائیں، ساتھ ہی ایک اچھی آبادی جو کہ لک آفٹر کرتی ہے ان لوگوں کی، جو سب سے بڑا عجیب طبقہ ہے، اور جو کہ ہر جگہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا ہم کچھ کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ وہ صاف ستھرے نہیں ہیں اور آپ کے گھر آ کے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کیسے صاف، کیا آپ متاثر نہیں ہوں گے اس چیز سے؟ سو all these things is happening because of one another and it's all interrelated basically. میں تو اس شہر میں پلا ہوں، میں نے اس شہر میں بیر کھائیں، لوکاٹ کھائیں، گرنڈے کھائیں، یہ ساری میں نے پہاڑ کی چوٹیاں چڑھی، اب یہ تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہم نے اپنے سامنے دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ آپ اسلام آباد آپ I9 I10 چلے جائیں، اس کا اور F6 کا مقابلہ کر کے دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا۔ وہاں روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، وہاں اشارے کام نہیں کر رہے ہیں، وہاں پولیس والے بھی نظر نہیں آئیں گے، پولیس ساری ادھر لگی ہوئی ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے وہ یہاں اوور اسپیڈنگ بھی چیک کر رہا ہے۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جن لوگوں کو اپنی یہ ذمہ داری دی کیا وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں، اور ہم کیا ایسا نظام بنا سکتے ہیں کہ ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، کوئی کام، کوئی قبضہ، کوئی برا کام ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی نہ پڑے۔ بدماش بنتا کیسے؟ ایک دفعہ اس نے کوئی برا کام کیا، جب اس کو کوئی پکڑنے گیا کسی نے اس کی معاملت اور مدد کر، اس نے ایک اور کام کیا، وہ کرتا چلا گیا۔ پھر ایک دن وہ آیا، جو اس سے کام کروا رہا تھا اسی کو کاٹنے کو تھا، جس کو ہم فرینکنسٹائن مانسٹر کہتے ہیں، اور پھر آپ کو بہت بڑی طاقت استعمال کرنی پڑتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے۔ جہاں تک انوائرمنٹ کا سوال ہے، اٹس لائف میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ لائف ہم اپنی خود ختم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو خود نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ جتنی پیریفریز ہیں جس طرح میڈم نے بات کی، یہ ایکوائرڈ ہے موسٹ آف دیم، اینڈ بڑی امام سارا علاقہ ایکوائر ہے، یہ ملوٹ اور یہ سارا ایکوائر ہے، تو وائی ناٹ سم اسٹرکچر بلڈنگ اینڈ پلاننگ از گوئنگ آن ہوتی ہے۔ چلے گولڈا کی بھی سمجھ سے بات تھی مجھے، میں نے کسی سے پوچھا، اس نے کہا جی جب اسلام آباد بن رہا تھا تو پریزیڈنٹ صاحب نے ایک ایگزیمپشن دی کہ چلے جی یہاں جو ہے اس وقت کے پریزیڈنٹ کہ یہاں چلے جی ہم اس کو ایکوائر نہیں کریں، باقی تو تقریباً سارے ایکوائر۔ پھر جیسے شازیہ نے بات کی ماسٹر پلان، یہ مجھے لگتا ہے وہ والا ماسٹر پلان ہو گیا، وہ والا نہیں ہوا جو کاغذوں والا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ماسٹر، اس وقت کا جو سیزر ہے، اس وقت کا جو بادشاہ ہے اس کا پلان، مجھے وہ لگ رہا ہے۔ پریڈ گراؤنڈ یہاں سے شفٹ کر دیا، ساری یہ آپ 0 پوائنٹ پہ جائیں، ایک زمانے میں نظر نہیں آتا تھا، اب سارے درخت کٹ گئے، اور پھر کہتے ہیں، پھر فلسفہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہم نے 10 درخت کاٹے، ہم نے 100 درخت لگا کے دی۔ یہ 100 سال پرانے درخت، 50 سال پرانے درخت، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، وہ آئیں کیسے نئے درخت ان کو کتنی جلدی ریپلیس کریں گے۔ یہ دیکھیں جو ڈاکومنٹری دکھائی گئی، تو اس سے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ کسی کی تو ذمہ داری ہے، ذمہ داری کس کی ہے؟ جو کہ سب سے پہلے وہاں شخص ہے۔ وہاں میں جب باہر گیا اور میں نے دیکھا کہ کوڑا نظر نہیں آیا مجھے بہت سی جگہ، اور میں نے پوچھا کہ آئی ڈونٹ سی اینی لٹر، میں نے کہا بیکاز وی ڈونٹ لٹر، ہم خود کوڑا نہیں پھینکتے، ہم کوڑا یوں پھینکتے ہیں کہتے ہیں کوئی اور اٹھائے۔ صفائی نصف ایمان ہے ہمارا۔ آپ کسی واش روم میں جا کے دکھا دیں، آپ باہر ملکوں میں یونیورسٹیز میں باقی جگہ جائیں، یو ول سی جہاں وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان کا حصہ نہیں ہے لیکن اٹس ویری کلین۔ اب آپ کو ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ دوسرا اس کا کام کرے، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ اگر ہر شخص تھوڑا تھوڑا اپنا کام کرے اس سے فرق پڑے، اور پھر جس کی یہ ذمہ داری ہے، مثلا میں اگر کوتوال ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں لا کو انفورس کروں، اور میں نہیں کر رہا تو میرا احتساب لیا جائے، مجھے روکا جائے، مجھے پکڑا جائے، مجھے سزا دی جائے۔ جس سے آپ نے کہا کہ ہم انوائرمنٹ میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، سیاست دان کو انوائرمنٹ اچھی لگنی چاہیے، یہ محاورہ، یہ ہمارا ہونی چاہیے گفتگو کہ جن کی جو ذمہ داری ہے، کیا وہ جو شخص لگایا ہے وہ رائٹ پرسن پتا رائٹ جاب ہے، اس نے آپ کو کوئی پلان دیا، پھر آپ نے اس کا احتساب لیا کیا، یا وہ لوئلسٹ ہے اور اس کا صرف یہ کام ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور باقی جو باقی لوگوں کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نیا نظام جو ہے وہ ہے کہ آپ 8-10 لوگوں کو خوش رکھیں، باقی جو ناراض ہوں یا نہ ہوں ان کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے صرف 10 لوگوں کو خوش رکھیں، آپ کو کوئی نہیں ہٹائے گا، اور باقی لوگوں کی آپ کوئی پرواہ نہ کریں، درد ہی نہ رکھیں اس چیز کا۔ اور یہ بھول رہے ہیں کہ اگر یہ ہمیں دور دراز علاقے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، کدے ہمارے گھر پہ بھی ہے۔ ہمیں جنگ کتنی اچھی لگتی ہے، جنگ شروع ہو گئی چھوڑیں گے نہیں، جنگ کا ماحول دیکھیں، بیماری ہو گئی تھی دور ہوئی ہے، کورونا ہمارے گھر میں آیا تو دیکھیں ہمارا کیا حال،
जब चीज अपने ऊपर आती है, और ये आ गई है हमारे ऊपर आ गई है, और अभी तक हम एहसास नहीं कर रहे। मैंने हाल ही में किताब पढ़ी है सेपियन, आप भी जरूर पढ़िएगा, और उसने 3 किताबें लिखी हैं अदारी ने, सेपियन और 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी एंड फ्यूचर ह्यूमैनिटी। हम तो बात कर रहे हैं ना कुदरत की और उसकी जो कैटास्ट्रॉफीज होती हैं, फिर वो बात कर रहा है इंसान की और मैन मेड कैटास्ट्रॉफीज की बात कर रहा है। वो एक नई बात कर रहा है, वो कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंसान हो सकता है उतना जो है वो आइंदा चल के उसकी शायद इतनी वो एक नया इंसान क्रिएट कर रहा होगा। मसलन मैंने एक यहाँ एक ऐसा आला लगा दिया जो हर थोड़ी देर बाद मुझे बता रहा है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, अच्छी हो रही है, और जैसे ही मेरी तबीयत खराब हुई तो उसका फलानी दवाई ले लिया। इसी तरह मेरे पास गाड़ी है, मुझे ड्राइवर की जरूरत ही नहीं, मैंने उसको कोई इंस्ट्रक्शन पास की, वो खुद गया सुपरमार्केट, वहां उसने कोई कर और सौदा लेके आ। अब तो एक नया दौर आने वाला है। तो ये फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी के हम जब सोच रहे हैं, हम तो एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट को हम बड़ी मुश्किल से सस्टेन कर रहे हैं, और नीड और ग्रीड हमारा नहीं खत्म। ये बेचारे कब्जे करने वाले अच्छा है, हमें हटाना चाहिए, या कम से कम इनको अल्टरनेटिव देना चाहिए। आप उनको बुलडोज नहीं कर सकते, उन्हें रहना है कहीं, लेकिन उनकी नीड है वो। लेकिन जो ग्रीड है उससे तो हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये सारी हाउसिंग सोसाइटी बहुत सारी इलाके कब्जा कराती है, बहुत से इलाके कब्जे लोगों को बिठाती है, और उसके बाद उनको हटा के उनको दूसरी जगह वो कर देती है। कराची में तो जब मैं आईजी था, अक्सर मैंने देखा झोपड़ियों में आग लग गई, पता चला कि किसी जगह बैठाया वो नहीं हट रहे थे, उन्हें आगे लगा दी। तो इट वाज टेरिबल। दिस इज व्हाट ह्यूमंस कैन डू टू ह्यूमंस। सो ये जो बहुत से लोग हैं, तो you have to go to the bottom of it, how actually really to come over it. कच्ची आबादी का देखें ना कि वहाँ सोशल इवल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। I11 में देखें अफगान बस्ती थी, इसको इन्होंने क्लियर कराया वहां से, और हमारे हर क्राइम को कहते हैं अफगानी कर रहा है। ऐसा नहीं है, इस शहर के अपने लोग भी बहुत सारे क्राइम कर रहे होते हैं, मजबूरी के तहत कर रहे होते हैं, लालच में कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली तौर पे वो उस तरफ माइल हो जाते हैं, कर रहे, बहुत सारी वजूहत है। और ये मैं बताता चलूँ और हर जगह कह रहा होता हूँ कि क्राइम पुलिस की वजह से नहीं हो रहा, आग फायर ब्रिगेड वालों की वजह से नहीं हो रही लग रही, बीमारी डॉक्टर की वजह से नहीं हो रही। समथिंग हैपेंस इन सोसाइटी, एज अ रिजल्ट पुलिस हैज टू रिस्पॉन्ड। देयर पुअर रिस्पॉन्स कैन बी अ रीजन कि क्राइम परपेचुएट करते हैं, बट एक्चुअली द क्राइम इज राइजिंग बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर रीजंस, एंड द बिगेस्ट इज पॉवर्टी। कौन शख्स दुनिया में बुराई करता है, एक आम सी बात है, वो जिसके पास सब कुछ है उसको कोई फिक्र नहीं, और वो जिसके पास कुछ नहीं वो भी तैयार हो जाता है करने। सो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन देखिए हम हंगर इंडेक्स में कितना आगे गए हैं, वो कहते हैं 18 से 20 इस वक्त जो है वो चल रही है। तो आप सोचें ये लोगों पे क्या गुजर रही होगी, और अभी हम एवरीबॉडी इज फीलिंग दैट इज अ ग्राउंड रियलिटी। लेकिन बात ये कि जिसका जो काम है वो क्यों नहीं करता, और इस फोरम से या बाकी फोरम से हम क्या कर सकते हैं उसको करने के लिए। परहैप्स यू हैव टू गो एंड मेक सम, जैसा हम कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, मैडम ने फरमाया आप एनवायरमेंटल के लेवल पे, सीडीए के लेवल पे, बाकी लोग के लेवल पे उनको ही बताएं भाई इससे सबसे पहले बीमारी तो आपको लगती है। अभी आपने जो तस्वीरें दिखाई ना घर के बाहर कूड़ा फेंका हुआ, भाई ये कौन सा इतनी बड़ी इसमें कोई साइंस है, वो कूड़ा उठा के किसी जगह रखते हैं, कुछ कर नहीं, लेकिन एहसास नहीं, क्योंकि उनको खुद नुकसान नहीं हो रहा होता। सो वी मस्ट मूव अहेड, एंड आई थिंक द वे फॉरवर्ड इज दैट कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसको एग्जीक्यूट करें। द वे फॉरवर्ड इज दैट कि सीडीए की जो बुनियादी जिम्मेदारी है, जो एक्वायर लैंड है उनका, कम से कम उस पर वो काम शुरू करें, उनको खाली कराएं। नंबर 3, ये जो बनी गाला की बात करें, ये भी सारी एक्वायर्ड लैंड है, बनी गाला की सर, एंड यू बी अमेज्ड के लोगों ने सड़कें बना ली, और जिसका काम था उसको देखने का। मैं तो कहता हूँ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को क्राइम बनाया जाए। वो लोग जो 10 साल पहले फैसला करके गए थे और आज हम उसको फेस कर रहे हैं, दे शुड बी पनिश्ड। मैंने एक शख्स ने 10 साल पहले एक पॉलिसी बनाई, वो रिटायर होकर घर बैठ गए, उसके बाद क्या हुआ, हम सब बाकी जो बच्चे आ रहे हैं सफर कर, उसका जिक्र ही कोई नहीं। अब उसको ठीक करने के चक्रों में हम लगे। उसको सजा मिलनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए, नेमिंग एंड शेमिंग होनी चाहिए, विसल ब्लोइंग होनी चाहिए उसके ऊपर। लेट्स गेट होल्ड ऑफ दोस पीपल एंड ओनली देन पीपल विल बी अकाउंटेबल। Now accountability should not be left to accountability people like police and anti-corruption or FIA or others. It is everybody's job. कानून कहता है हम सब पुलिस वाले, आप अपनी दिफा कर सकते हैं, अगर साथ वालों को कुछ हो रहा है आप उसकी मदद कर सकते हैं, पुलिस को किसी चोर को भाग रहा है आप भी उसके साथ भागे और पकड़ लें, आप ये काम कर सकते हैं। All of you are lawmen. So boiling down, and my last words would be like, if we have to sensitize people who are actually responsible, and they should be held accountable. This is terrible what is happening, and this is happening in every city.
आप बलूचिस्तान चले जाए, कोई अस्पताल नहीं है, कोई प्रॉपर स्कूल नहीं है। आप लवाद पे चले जाए, आप गुजर खान चले जाए, आप कोई और चले जाए, आपको बहुत सारी चीजें नजर नहीं आएंगी। हर बंदा पेम्स आ रहा होता है। यानी मोटरवे में जब मैं पोस्टेड था, यानी 300 किलोमीटर दूर भी कोई एक्सीडेंट होता था तो हम उसको पेम्स लेके आते, क्योंकि कोई रास्ते में कोई ऐसा मुनासिब अस्पताल ही नहीं है कि आप उसको ले सकते। So let's hold those people responsible. And I think the pillars of state हैं, सबसे पहले executives are to be held responsible, and they should be sensitized, and somehow they should be held accountable. ये नहीं कि आज आपने कोई बात कह दी and you got it. No, you have to pay for it. You did something, you have to pay for it. An executive means all the bureaucracy and all the other apparatus of the state. And then of course legislative, कि जो आप कानून बना रहे हैं, देखिए वो implement हो रहा है, equity, inclusiveness है, मैनिफेस्टो कुछ होता है, वहां आके कुछ और करना शुरू कर। जुडिशरी हैज टू इंश्योर ये मोर देन 20 लाख केसेस आर पेंडिंग इन कोर्ट्स, यानी कि एक शख्स गया है, चोर पकड़ा गया है, अब उसको सिर्फ सजा देनी या नहीं देनी इस पे बहस हो रही है तो सालों साल। इस वक्त जो 116 प्रिजन्स है पाकिस्तान के, उसमें अगर 50,000 लोग रह सकते हैं तो 80,000 लोग रह रहे हैं, और उनमें से आधे ज्यादा तो वो लोग हैं 66% जिनकी अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, कन्विक्शन ही नहीं हुई थी। तो आप क्यों रख रहे हैं उनको? आप बेल करें, अच्छी श्योरिटी बनाएं। तो ये सारे वो सिस्टम है जो हम कर सकते हैं। किसने करना है ये बहुत बड़ा सवाल है, और जिसने नहीं, जो नहीं कर रहा उसको क्या पकड़ सकते हैं। आई थिंक दैट शुड बी द क्रक्स, एंड दिस इज अ वंडरफुल सेशन। बहुत चीजें सीखने को मिली, लेकिन हमारी नीयत जब तक ठीक नहीं होगी तो हम ये चीजें ठीक नहीं होंगी, और जब तक हम जिम्मेदार और कसूरवार और पकड़े नहीं जाएंगे और हमें नेमिंग एंड शेमिंग के थ्रू हमें बताया नहीं जाएगा कि आबिद साहब से ज्यादा कौन अच्छा काम कर सकता है, तो ये चलता रहेगा ऐसे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। Quickly, मैं इसको translate कर दूं. There are 2 or 3 things. One is that there should be a very strong social side to the whole thing, and we should need instruments which are social in nature. We need to hold them responsible and start a campaign to make society, it should be made more sensitized them to the environment and other issues, and especially to create a justice. Mr. Kalim Imam has also mentioned the role of state, that we citizens surrender a few of our privileges to the state, and then we believe that the state has to do something. So now the state should come in and do something, especially on the areas which have already been acquired, like Banikala and Paraku and others, and that is the crux. And then the crime should be punished at its site and immediately. We should not wait for some grand plan that will come on laterly. So obviously, social side is. I personally believe that in the end, everything is social. So I totally agree with you. With this, we have come to the end of this program. So the forum is open for questions. Few questions, but very quickly, I think already it was a long overdue. So 1 question and 2, 3, 4 questions. And we'll take all of them together. वहाँ से पढ़ लें, आपके पास ऑनलाइन सब ऑनलाइन वो एक दफा पढ़ के सुना बोला। मौसम की नजर बहुत अच्छी है। हाँ, मौसम। Where are the concerned government agencies for the implementation of law? Asif Mahmood is asking. Second, Tahir, in rural areas, all people cutting trees on maximum age is 5 years tree. That is very horrible situation. San Rahman says, thank you so much for organizing these things. Asif Mahmood says, why CD is not working by itself? Muhammad Amjad Saab says, the crux of the each story lead us to poor coordination of different organizations. I think all organizations which functioning in the city should be mandated according to the master plan and should be under the key organization, which is the custodian of the master plan. Looking forward to the views of the panelists. Mr. Basharat, Dr. Basharat Bashir, I would like to commend Dr. Basharat Environment on SCD implementation specialist, but he has not commented. Yes, he is commenting on the next line. Journalist and senior political analyst
please hold it further. And so these are the few things, and I think the Deputy Commissioner had regretted. He said that he wanted to come over. ICT was being mentioned, so the DC Islamabad was very much invited, and he was willing. He was even keen. He said at the last moment, the secretary has called him. He was regretting for the environment or the session? Because he couldn't come. I would like to add one thing while sitting here with Imam sir. हमारी top management से भी बहुत इस्लामाबाद में पिछले 26 साल में मैं ये में काम कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ। कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं वो आज नहीं सुनाऊंगी, लेकिन काफी हद तक इस्लामाबाद की एयर क्वालिटी इस वक्त विद इन लिमिट्स है। ये मैं हर फोरम पे प्राउडली कह रही हूँ। कोई चैलेंज कर ले, इस्लामाबाद में इंडस्ट्रियल एयर एमिशन हमने 0 कर दी है। दैट इज विद इन द स्टैंडर्ड्स, दैट इज अचीवमेंट। इसमें बहुत हद तक जब भी इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशली मैनेजमेंट चेंज होती है तो हमें भी चैलेंज आते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स को चैलेंज आते हैं, क्योंकि वहां से आती है कमिटमेंट टिल द ग्राउंड लेवल। किसी थाने को हमने अप्रोच करना होता है तो हमें होता है हाँ आईजी की तरफ से हमें आशीर्वाद है, गो हेड है कि नहीं। तो कलीम साहब की मैं या तैमूरी साहब हो या कुछ नाम है हमारे इस्लामाबाद के आईजी के, ताहिर आलम साहब हैं, जान मोहम्मद साहब थे, या साहब थे, मैं आई कैन नेम दोज पीपल। और फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट हु वर्क विद ईपीए चौधरी मुनीर साहब, मैं अल्लाह रेस्ट इन सोल, ही वाज द पर्सन, चौधरी मुनीर साहब जिन्होंने हमारे साथ डीएसपी जिन्होंने हमारे साथ एनवायरमेंटल स्क्वाड में इतना काम किया कि शायद आज दिन तक कोई भी नहीं कर सका। तो थोड़ा सा मैं इन्फोर्समेंट एजेंसी और ईपीए के रिलेशन में ये बात जरूर कहूंगी, और शायद मेरी ये बात कुछ लोगों को बुरी भी लगे कि बाज आईजीज के दफ्तरों में मैंने खुद इतने चक्कर लगाए हैं, लेकिन आज दिन तक पुलिस का एक बंदा हमें नहीं मिला। एंड आई प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड, कितने डीओ लेटर लिखे, कितनी रिक्वेस्ट की, और आज क्या है कि हमारे फील्ड ऑपरेशंस जो हैं वो मिनिमाइज हो चुके हैं। लेकिन जब कलीम इमाम साहब जैसे या तैमूरी साहब जैसे या खालिद खटक साहब जैसे लोग आते हैं वो हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो ये किसी हद तक डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन को कौन हेड कर रहा है। चेयरमैन सीडीए मैं श्योरली यहाँ रिकग्नाइज भी करूंगी कि जब कभी उनकी नॉलेज में कोई इस किस्म का इशू मैं डायरेक्टली लाती हूँ, विद इन मिनट्स वो एक्शन लेते हैं, वो ईपीए का साथ भी देते हैं। लेकिन बात ये होती है कि टॉप मैनेजमेंट की नॉलेज में कोई बात लाई जाती भी है कि नहीं, और टॉप मैनेजमेंट खुद कितनी कमिटेड है इन चीज़ों के साथ। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस्लामाबाद की हद तक इंक्रोचमेंट रोकनी है, कोई भी रोकनी है। और जहाँ तक सर आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने ये ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करने हैं, इसके लिए हमें बेहद ज़रूरी है कि हमें जॉइंटली अपनी टीम्स बना के इन ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन करें, नहीं तो फिर बजा है कि हम अदालतों में खड़े हों। मैं इसमें ऐड कर दूं मैम के साथ कि बात मैम के साथ हम लोग गए हैं कि जब फील्ड में गई हैं तो हमें देखा है कि मैम जो हैं और इनकी टीम बहुत एक अच्छे तरीके से काम करते हैं, बट इनको आईसीटी और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से वो कोऑपरेशन हासिल नहीं होती जो इनको चाहिए होती, जिसकी वजह से ये लॉ इन्फोर्स नहीं कर पाते वहाँ पे। तो अब जो सिनेरियो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का शुरू हो चुका है, तो हमें ये मस्ट है कि इस ईपीए को एम्पावर किया जाए। हम बात तो करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट जैसा हमें एनवायरनमेंट यहाँ पर चाहिए, बट वहाँ पे देखें कि ईपीए कितना एम्पावर है, और फिर देन हमारा इस्लामाबाद का ईपीए देखें तो आपको सारा फर्क पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया। लोकल ऑडियंस के लिए 3 बेसिक क्वेश्चन बारी बारी पूछिए एंड विल टेक इट ऑल टुगेदर। आपके पैनलिस्ट पहले आप मेरा क्वेश्चन एक क्वेश्चन और एक कमेंट है। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे जो एक्ट है पाकिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल्स की फॉर्मेशन पे भी प्रॉपर गाइडलाइंस है, इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिशन पे वो ट्राइब्यूनल्स का इसका स्टेटस क्या है, वो कितने एक्टिव हैं, और इनके ईपीए को बहुत साल लग जाते हैं केसेस करके रहते हैं कोर्ट में, तो वो ट्राइब्यूनल्स किधर है। सेकेंडली हमारे
इस्लामाबाद में मास्टर प्लान में बाउंड्रीज डिफाइंड है, जोन्स डिफाइंड है, बट वाटरवेज की बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहला पॉलिटी वहां पर आता था कि बाउंड्रीज वाटरवेज की एग्जिस्ट नहीं करती थी, सोसाइटीज बनती जा रही। तो अब जाहिर है उन सोसाइटीज को हम खत्म नहीं कर सकते। मिटिगेशन एफर्ट के तौर पे हम हमारी जो प्लांटेशन जो विदाउट एनी प्लानिंग होती है, जैसे दोनों पार्टस लगा दिए कराची में, सारे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ड्राई हो गए। हमारे यहाँ मलबेरी लगाया फिर यूकेलिप्टस लगा दिया जाता है। तो उन दरख्तों को उन वाटरवेज के लिए लगाने की जरूरत है जो कभी दरिया थे और अब नाले बन चुके हैं, जैसे खुरम, समा, इन पे बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनी हुई है। वहां पे ये प्लानिंग की जाए तो अब सोसाइटीज को आगे जब रिवर अपना कोर्स चेंज करेगा विद इन अ फ्यू इयर्स, या हमें नहीं पता प्रैक्टिस सिचुएशन क्या होती है, कभी भी रिवर अपना कोर्स चेंज कर देता है। वो सोसाइटीज वहां पे लोग वल्नरेबल है, कितने बड़े लेवल पे तबाही आ सकती है किसी भी टाइम पे। तो हम ये वाली प्लानिंग को वहां पर इम्प्लीमेंट करें। सेकेंडली सीडीए का एनवायरनमेंट विंग है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि आपका एनवायरनमेंट विंग के साथ कोऑर्डिनेशन कैसी है, और वो अगर विंग के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वो वहां पे क्या करें? जी प्लीज इंट्रोडक्शन भी करवा दो। अस्सलाम वालेकुम मेमोन, आई एम Abid, environmental journalist from Associated Press of Pakistan and Secretary General of Environmental Journalists Association. I had a general question to the panel. Do you think that we as a society and as a system need to develop some environmental SOPs, both for police, bureaucracy, media, students, activists, civil society, to keep themselves abreast with environmental changes? These changes that are affecting every individual. Like I want to comment, sir, that every police officer, he inhales PM 2.5 at dangerous level in every interjection, in every traffic crisis. But we don't know what is the status of his lungs. Will he survive till 50? Will he survive till 60? Or he will be able to make it to his retirement without affecting his lungs? So do we need to develop, or is there any sort of such kind of SOPs or policy going on? So keep them people abreast with what is happening in their room. Also for legal people as well, ma'am. For our lawyer fraternity, they are the advocates, the safeguardians of our constitution. Do they also need to apprise themselves as per the developing scenario of environment? Your take on that? Aapka sir question. Yeah, it's a related thing here, but I think I wanted to say a few things. Quickly, sir. Yeah, questions पहले ले लो. Questions पहले ले लो. Question पहले. जी. ले comments ले. Sir, please. I moved into Islamabad about 76, 77. Finally built a house in F10. We had a beautiful stream 200 feet away. उसमें मछलियाँ थी, कछुए थे, wild tulips grew there. बच्चे खेलते थे वहाँ जाके. 7-8 घर थे सड़क पे. Now these are all polluted. I'll give you an example. I worked in the planning commission also. वहाँ से आते थे, Navy और Air Force के कॉलेज कर लेते थे, उससे लोग नाराज हो गए. Air Force वाले शुरू हुए, मैंने कहा, I hope your smell is different from that of the Navy. क्योंकि Navy जब खत्म होता है ना, वहाँ पे जो ट्रैफिक लाइट है, वो शुरू होता है आपकी कौन सी है राज कौन सी वो सड़क है, एयर यूनिवर्सिटी के साथ. इससे पहले है जी, वो होती सब अपना सॉरी बात लाइट होती. एयर फोर्स वालों ने क्या किया, कहना शुरू कर दिया यहाँ पे इधर पार्क करोड़ों को साफ सुथरा. अब हालात ये हो गए हैं कि एवरी इस्लामाबाद में आप एनवायरनमेंट की बात करती हैं, मुझे ये बताइए, हैव यू एवर मॉनिटर्ड द वाटर? हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मॉनिटर्ड द वाटर? बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई आपने, झाग भी दिखी हुई है, पानी आके दे रहा है. द बेस्ट एग्जांपल इज चाहे जीटी रोड, बड़ी रोड, वो पिंडी की जो है बाल रोड से आगे जाती है, वो पुल आता है, चाहे वो दरिया, दही के दरिया जो तुरंत आके दे रहे हैं, सी द टू वाटर्स, टू स्ट्रीम्स, क्योंकि क्या रंग है, क्या रंग है, क्या शामिल है. तो दूसरी चीज एनवायरनमेंट की बात हो रही है, फॉलोइंग वाटर लेवल्स एक्विफर्स, एसिडिक पॉइजनेशन हो रही है. एटॉमिक एनर्जी कमिश्नर काम किया, तो वहाँ पे ये चेक होते थे एज ए जस्ट फॉर प्योरली टेक्निकल इंटरेस्ट एंड एसिडिक पॉइजनिंग. एंड यहाँ तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 30 फुट जैसे आप क्रॉस करें बिकम्स टेरिबल. फैसलाबाद का खारा पानी is now moving into Lahore. What will happen to Lahore? I'm scared. वो सारा एक्विफर कॉमन है, पंजाब से इंडियन पंजाब में uncontrolled pumping and the water level is going down. At stake is क्या होगा? प्लस आपने बड़ा हाईलाइट किया दरियाओं में क्या होगा. एक चीज मैं कहना चाहता हूँ,
वेस्ट, हम एक ट्रैप में फंस गए पिछले 15 साल से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। वेस्ट कौन मैनेज कर रहा है? पहले एक एंटिटी के पास होती थी तो कुछ काम होता था, अब क्या हो गया, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। क्या वेस्ट कलेक्ट करती है मुझे बताया। तो ये वो है। और जो हॉस्पिटल वेस्ट है, how many hospitals have incinerators? Please check. I had to fight with some ranges where I was अस्पताल बंद थे, प्लानिंग कमीशन से रूल हुई थी, मैं देखने गया, मैंने तो कितने इंसिनरेटर्स आते और वाला तो वहाँ पे रिपोर्ट के पास चीजें हैं, दिखाओ ये बंद किया, हमने जरूरत कोई नहीं। And look at the waste coming out of PIMS, look at the waste coming out of the Shifa hospital, it's a नालों में लेके क्या, no checks and balances at all। और there is a very simple solution. DIMJ in Faisalabad National Institute of Biotechnology Genetic Engineering has pioneered phytoremediation based on an old classical technique. अब देखो हमारे पुराने ज़माने में गांव में झील सी होती थी, उसमें बड़े-बड़े कमल के क्या वो पौधे लगे होते थे। उन्होंने माइक्रो कुछ 3-4 साल पहले किया, लोग भी टैंक्स दिखाए 8 फुट बाय 8 फुट बाय 8 फुट हाइट लगे हुए। अच्छा, ये गंदा पानी, फजला पानी फैसलाबाद का सूरज एंड केमिकल वेस्ट कमिंग इन, एक टैंक, दूसरा टैंक, तीसरा टैंक से नोटिस एनीथिंग स्पेशल? यार ये कभी बड़े बैठे तीसरे टैंक में बड़े स्लमिंग, तो पूरा पानी का साफ है, उन्होंने फ्लोट किए चीजें। आई एम सॉरी मैं लंबा टाइम ले रहा हूं, बट दैट बी ऑफ इंटरेस्ट। पॉलीस्टाइरीन को फ्लोट किया पानी में, सुराख करके प्लांट्स डाले स्पेशल, उनके 3-3, 4-4 फुट रूट्स अंदर गए हैं, उनसे सबके नाम में 3 flows like this cleaned up. They went to the Lahore Waste Management Company, they're doing it for OGDC, oil spill cleanup करना, environment के सारे। But when they went to LWMC, they were shocked. इन्होंने कहा ये इतने करोड़ लगेगा, यार बहुत कम ले रहे हो, बड़े अच्छे लोग आप, ये डबल ले लो, उन्होंने हम काम नहीं करते आपके। ये हालात, इसलिए प्रॉब्लम जो आ गया है, इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, इनका फर्क completely compounded by this public-private partnership. It is held for Pakistan and all over the world, जब public-private partnership enforced की गई है, which has resulted in lower service quality, high costs, and no ownership. Thank you very much. But सब quickly आपने पूछना तो पूछे। मैं बस अभी ये छोटी सी एक गुजारिश करना चाहूँगा मौसम कि हमारे यहाँ हर अदारा पाकिस्तान का जो है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मेरे साथ 2 सर्जेंट आगे चल रहे हो, प्रोटोकॉल चल रहा हो, और जहाँ पर मैं जाऊँ वहाँ पर लोग डर जाएं, सहम जाएं, और हमें फोर्स दे दी जाए। वापडा भी ये कहता हमें फोर्स दे दें, सारे इदारे कहते हैं हमें फोर्स दे दें। क्यों ना फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्ड करके इदारों को फोर्सेस के साथ काम करने का ढंग जो है वो सिखाया जाए। दूसरी चीज, मोस्टली मैंने देखा है अपने सहाफती कैरियर में, रिपोर्ट भी किया है, देखा भी है कि हमेशा सबसे बड़ी जो एनवायरमेंट वायलेशंस होती हैं वो गवर्नमेंट जो है वो खुद करती है, जिस तरह अभी डॉक्टर फरजाना साहब ने mention, और जो बड़े डेवलपर्स हैं उनकी तरफ से जो है वो की जाती है। अभी जो ताज़ा तरीन मिसाल है वो लाहौर रिंग रोड की है कि जब उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर था, पता नहीं उसकी ख्वाहिश पर जो है वो उस डिज़ाइन में अमेंडमेंट की गई, जिस तरह मलिक रियाज ने कहा 2 सोसाइटियों को मिलाने के हवाले से, तो अवामी ख्वाहिशात, इन्वायरमेंट हैजर्ड जो है सारे बलाए तार। तो एक तो ये जो फैसले हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो उनको कैसे पेश नजर रखा जा सकता है। अगर मैं बहैसियत एक शहरी, मैं एक कोर्ट में जाता हूं और कोर्ट मेरी फेवर में एक ऑर्डर देती है और दूसरा जो है अपर कोर्ट में चला जाता है, ऑर्डर जो है वो मुख्तलिफ आ जाता है। फिर जिस तरह अभी ताहिर दिनसा ने मेंशन किया, एक ये केस स्टडी जो है, मुझे ये तकरीबन 7-8 साल से इस केस का अंदाजा है, पता है, और मैं वहाँ पे विजिट भी कर चुका हूँ। तो वहाँ कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं, अब बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एक जज जो है वो 20 साल से फैमिली केसेस सुन रहा होता है, अचानक जो है
وہ چیف صاحب کی طبیعت میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ شریعت میں لگا دیتے ہیں یا انوائرمنٹ میں لگا دیتے ہیں. تو اسی طرح جو حال جو ہے وہ کنزیومر پروٹیکشن بورڈ کا بھی, جس طرح زینب نے ابھی بات کی ٹریبیونلز کے حوالے سے, ہمارے ہاں ایک تو جوڈیشری کی جو ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ اور ان میں جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں, رولز ہیں, اس کے حوالے سے ابھی ڈاکٹر شوکت صاحب نے بھی ایک بات کی, میں ان کے پوائنٹ کو سیکنڈ کرتا ہوں. جب فواد چودھری منسٹر تھے آئی ٹی کے, شاید سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, تو کووڈ جو ہے وہ پیک پہ تھا, تو اسی طرح سیمینار میں نے ان سے بات کی. میں نے ان سے کہا کہ ہمارے ہاسپٹلس جو ہیں وہ چونکہ اوور برڈن ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ یہ جو ہاسپٹل ویسٹ ہے تو وہ جنریٹ ہو رہی ہے اور وہ تو بہت خطرناک ہے. تو کیپیسٹی کا یہ عالم کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاسپٹل ویسٹ کا کوئی مسئلہ نہیں. تو ہمارے ہاں جب تک حکمرانوں کا بھی یہ حال ہوگا کہ وہ کسی چیز کو سنجیدہ لینا ہی نہیں چاہتے اور حقائق پر توجہ ہی نہیں دینا چاہتے, تو اس وقت تک یہ کیسے ایک آئیڈیل انوائرمنٹ بن سکے. بالکل, تھینک یو ویری مچ. بھٹی صاحب نے آپ کی خواہش پوری کی, جو آپ کہتے ہیں نا آنکھوں میں چمک نہیں ہے, دیکھیں یس ڈن اٹ. تو ایک کہنا چاہوں گی جو بات کی ہے یہ جتنے ٹاپک ہیں صرف اسلام آباد کی انوائرمنٹ کی اگر ہم بات کریں اور اس پہ ہم کرنا چاہیں تو میری ایک فار آنسر ٹو ایوری کوشچن, یہ ہم نے اسلام آباد میں شروع کیا ہوا ہے فائٹو ریمیڈیشن کا نیپچی کے ساتھ مل کے بارہ کے ایریا, بڑی امام کے ایریا میں. یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں. سکسیس سٹوری بھی بہت ساری ہیں, لیکن اگر ہم یہ بات کریں اور اس چیز کو لے کے چلیں تو ہمیں 10 ایکسکلوسیو سیشن چاہیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, واٹر کوالٹی, اربن پلاننگ, ایئر کوالٹی, ٹری پلانٹیشن, انکروچمنٹ, انڈسٹریل ایکٹیویٹی, ویہیکولر ایمیشن, ہاسپٹل ویسٹ, ویسٹ واٹر. صرف ان ایشوز پہ ہمیں اتنا زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اس میں اسلام آباد کی میوچل پرابلمس کو ڈسکس کریں. میں ایک چیز ایڈ کر رہی ہوں کہ سے آپ نے پوچھا تھا ٹریبیونلس کدھر ہیں, جو اسلام آباد کا ٹریبیونل ہے وہ ٹھیک ہے, اس کی بلڈنگ جی لیول والے پروسیکیوٹر اکاؤنٹیبلٹی ٹریبیونل ہے. اب ادھر آ گیا ساتھ میں ہائی کورٹ کی بینچ سائڈ پہ, اور ٹریبیونل میں 2 ججز ہیں, ایک ٹیکنیکل سائڈ پہ اور ایک جوڈیشل سائڈ پہ. وہ دونوں کیسز سنتے ہیں, اور جیسے معظم صاحب نے کہا میں اس سے 100% ایگری کرتی ہوں. فیملی کیسز سن رہا ہوتا ہے اس کو ٹریبیونل میں لگا دیں, کنزیومر کورٹ میں لگا دیں. یہی حال ہے. کوئی جو جوڈیشل جو بھی لوگ آتے ہیں ان کو ٹرین کر کے یا جسے کہتے ہیں کم از کم ایسے لوگوں کو بھیجا جائے جن کا کوئی نالج ہو انوائرمنٹ میں. ریسنٹلی میں نے کیس اپنا ایز این انڈیویجول ایگریڈ پرسن کیا پلاسٹک بوٹلس کے اوپر, اور وہ جسے کہتے ہیں جی کورٹ نے رولنگ دی جی شی کین سو دا کمپنی ڈائریکٹلی. پھر کیا کورٹ کے اختیارات ختم ہو گئے تھے؟ کیا اس ایکٹ میں اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں کہ جو کیمیکل فارمولیشن چینج کر دیتے ہیں, جو انفینٹس کی میڈیسن ہوتی ہیں پلاسٹک بوٹلس میں, ان کو بین کیا, اور اب اس کی ابھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو یہ چیزیں بھی جسے کہتے ہیں اس فورم سے آگے جانی چاہیے, یہ بات اوپر تک پہنچنی چاہیے کہ ذرا ٹرین لوگوں کو لایا جائے. اس میں علی صاحب نے بھی جو بات کی اور معذر سے دیکھیں, جو چند چیزیں تو آپ کو بہت جلد شروع کر دینی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں. if you're looking towards next 20-30 years. لیکن جاپان میں بچوں کو نا شروع میں تعلیم نہیں دیتے, بلکہ ان کو معاشرے میں اویئرنیس سکھاتے ہیں, سیوک ہیبٹس سکھاتے ہیں. اگر آپ نے سیوک ہیبٹس بچوں کو نہیں سکھائی تو آپ اس کو ABCD یا رائم یا وہ کرانے which is equally important maybe, then he forgets about what is ultimate responsibility. سیکنڈ بات آپ نے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون نافذ کریں. بھائی قانون نافذ کرنے سے پہلے آپ کی روٹ کاز پہ جائیں کہ یہ کام ہو کیوں رہا ہے. مثلا اگر کوئی شخص جرم کر رہا ہے یا کوئی شخص قبضہ کر رہا ہے, you have to go for the root cause, and if you're not going for a root cause, آپ جو ہے نا اوپر ایک درخت اگ رہا ہے اور اس پہ بہت سارے پتے آ رہے ہیں, پتے کاٹے جا رہے ہیں جو خراب ہو, آپ اس کی جڑیں نہیں ٹھیک کر رہے. لیکن دہشت گردی یا جو سیریس کرائم ہوتا ہے اس کے روٹ کازز ہوتے ہیں. آپ نے کائنیٹک ایکشن کہاں تک لیں گے, آپ نے جو ہے روٹ کازز کو ایڈریس کرنا ہے کہ لوگ یہ نہ کریں. اور اس میں یہی ہے کہ یہ نہیں کہ یہ پولوشن, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو سب سے پڑھا لکھا طبقہ پولوشن کر رہا ہے, ٹھیک ہے, پہلے اپنا کوڑا دوسرے گھر کے پاس دے اور جانے دو, آگے دیکھا جائے گا اس کو.
तो भाई ये तो सबसे वो रियलाइज ही नहीं कर रहे कि व्हाट इज बैड फॉर मी इज आल्सो बैड फॉर अदर्स। हम कहाँ से लाएं जाए? ऑफ कोर्स यू विल एनफोर्स लॉ टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ की आप बात करेंगे, लेकिन काइनेटिक एक्शन कहाँ तक लेते रहें? You need to go to the root cause and you need to educate and you need to make them aware. यानी बच्चा घर में सारा दिन कूड़ा फेंकता रहे और एक बंदा सारा वक्त साफ करता रहे, भाई बच्चे को हमने समझाना है कि आपने नहीं करना ये काम, और कोई उसकी कोई रोक टोक होनी चाहिए, कोई उसको किसी तरीके से रोकना है। एनवायरमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आप हालात में तो देखिए ना, इस्लामाबाद में बहुत सा खूबसूरत इलाका भी तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आसपास कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आगे चल के हमारे लिए बड़ी बुरी साबित होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, सब बाद में हमारे यहाँ ये बेनिफिट आखिरी कमेंट ले लें फिर। कॉमन प्रैक्टिस है कि हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, स्ट्रीट में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं, जीटी रोड पे, कई दफा मेरा इस बात पे झगड़ा हुआ है कि लोग अपनी गाड़ी से गंद उसमें डाला, खाया पिया और बाहर फेंक दिया। 2-3 दफा मेरा इस बात पे झगड़ा, मैंने उनको रोक लिया, मैंने कहा जी देखें प्लीज आप मेरी जो है वो रोड को खराब कर रहे हैं, गंद डाल रहे हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बाप ने बनाई है। मैंने कहा ये मेरी मलकियत है। इसी से रिलेटेड आपका पहला भी जो सवाल था, आपने वो जो पॉलिटिशियन वाली बात की, तो मैं उस पर थोड़ा पहले ऐड करूँ कि ये सवाल बताता हूँ कि जिस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो हमारे एक मिनिस्टर साहब थे, मैं उनका नाम ही लेना चाहता, उनसे मैंने ये सवाल किया कि ये जो हमारा रावल डैम का पानी है ये बहुत गंदा है, यहाँ पे पीते हैं लोग। तो हम इंटरनेशनल लेवल की तो बात करते हैं, लेकिन अपने जो घर में हमारा ये पीने का पानी, हम इसको ही साफ नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने बात को जवाब देते हुए ये कहा जी कि बिल्कुल मैं जानता हूँ जी कि वो मलका कोसार में काफी सारे ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स का पानी रावल डैम में आता और चलता पानी वैसे ही वो हो जाता है। तो हमारे जो मिनिस्टर लेवल के लोग हैं उनकी नॉलेज का ये हिसाब है कि वो नहीं जानते क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट को। तो जितनी देर राइट पर्सन फॉर राइट जॉब नहीं होगा, हम इस चीज को आगे लेकर नहीं चल सकते। और इस वक्त जो कंडीशन है यहाँ पे, क्लाइमेट इमरजेंसी पूरे पाकिस्तान में नाफिज हो चुकी है, और अगर इन चीजों को हम रिसर्च बेस्ड नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और ये जो बिहेवियरल चेंजेस उस वक्त आएंगे, जैसे सर ने भी बात की, आपने भी बात की, अभी ये जो गाड़ी की बात की है, तो ये जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे सीवरेज का पानी आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि SDPI इसके ऊपर एक रिसर्च करवाए कि जिसमें ये जितने भी सीवरेज का वाटर जहाँ पे रावल डैम में शामिल हो रहा है, तो इन घरों की जो हेल्थ है उसको चेक किया। तो मैं 100% श्योर हूँ कि हर घर में एक मरीज लाजमी होगा जिसको किडनी का कुछ इशू होगा, लिवर का, स्टमक का लाजमी होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इस थैंक यू सर। बाहर चाय लगी हुई है तो मजीद गुफ्तगू अगर आप चाय पे कर लेते हैं। सर पॉन्ड का जिक्र कर रहे थे, उसे छपड़ कहते हैं।